I'm more into early years schools, and I've been working with different organizations like Beacon House, Khan University, and Institute of Education. And recently, I was attached with Head Start School System Islamabad. So a very warm welcome to all of you, and I hope that we are going to have a fruitful lesson, um, fruitful time together with this workshop, and you will take away some very important things with you, and you would be, as Shabana earlier said, that these trainings are very important because teacher is a learner, and a teacher has to learn throughout the life because you are dealing with human beings. Things are changing so rapidly, so rapidly. The digital change is so big and so gigantic that we have to cope up with it in so many different ways. And this is only one example. There are so many other changes which are taking place, climate change, and there are so many other things also. So we need to keep up with all these things along with our students. When the child is being um, put into a situation where he or she has to deal with all these things, then we need to change our strategies also. So that's why it's very important for the teachers to keep on learning. So I'm sure that together today we will learn something. You will learn from me and I will learn from you. And inshallah, it will be a fruitful session. Uh, thank you so very much. So should we start now? Yes, please. Thank you. All right. So the topic of the session is the heart of early years foundations for lifelong learning. We will start with an icebreaker, but I would like, I can continuously see that Shahkot raised hand. We have not started anything yet, so your hand should be down for the moment. And whenever I give you a task, instead of switching on your mics right away or unmuting your mics right away, just wait for my call and I will ask you, and then you can do that. Because if we will not follow the rules, then we won't be able to get benefit of this workshop, because then there are too many sounds, voices, and we are unable to hear what actually is meant to be heard. So we will start with an icebreaker, very short, very crisp. I will just give you 3 minutes to, not 3 minutes even. I will like to give you a minute to think about, okay, if you were four again, what would be your favorite classroom activity? You all are teachers, you are doing many activities in the class. So tell me that what activity you enjoy more in your classroom. Now you can raise your hand. No volunteer? What is the most enjoyable time in your classroom? If you were four again, just imagine yourself sitting in your own classroom as a 4-year-old child, and then tell me that what would be your favorite activity. Yes. Who would like to say? If I were Yes, please. I Sorry. Yes, please, Yusra Kamar. Can you please speak? Yusra Kamar, unmute your mic and speak, please. Yusra Kamar, can you hear me? Can I? Yes, please, Mahanood Beg, please do that. If I were 4-year-old, I will enjoy the most fun learning like that if my teacher told me about the kite. So I want to see the kite the teacher will make and fly it on the class. All right, well done. Yes, absolutely right. And
a very sweet wish of a 4-year child. Anybody else? Thank you. Yusra, can you please speak? Your hand is up. Okay, hand is up, but she's not ready to speak. Anybody else? Okay, I will not, I would like you to be participative, because if you will not participate, then it will be one-way traffic, and I don't believe in one-way traffic when I am training. It's very important for us to talk and collaborate together. Ji, We can see a few answers in the chat box as well. Ji, right school has Rawalpindi can settle it down. Then Asma should okay. be there. Okay, But everybody will okay, all right. coordinate and participate, please. Yes. Okay, the warm-up activities, art activities. Mostly, what we have got is that what we enjoy most is fun. ये तो And मैंने it's कंप्यूटर पे बनाई है absolutely, please turn off your ये mic. फिर कुछ कर Please, दिया please mute your mic, please, everyone. बताओ भाई और किसने करना है मीटिंग मुझे सेंड किया लिंक 2-2 3-3 मेंबर्स हो जाएगा ज्वाइन कर लें Kindly mute your mics, please. कॉल करके बुलाओ Shibana, ये तो मैंने स्लाइड can you mute their mics, please? Okay, so it's that's what it is, that a 4-year-old child does not want to be bombarded with written work, with um, boring reading work, with numeracy work. What they want is fun. And why they want fun? Because they are too young, their attention span is too short, and they want the activities to be changing on a very, very rapid pace. So this is what is important, that early childhood education lays the foundation of the whole child. We are shaping the brain, behavior, social skills. Just a minute. Social skills, emotions, and worldview of our youngest learners. So when we are teaching in an early year, it's not only that we are teaching them numbers, we are teaching them letters, we are teaching them haruf, we are shaping the whole child. Like you all said, that they want to do the fun activities, art activities, they want to see the things. So this is a very, very natural demand of a young child, because their brains are under development. They are not able to comprehend difficult and complex things. So we have to cut and we have to make the things digestible for them. So we will start from now. What is the basic philosophy of the early years? I'll just give an example that maybe when we say a child that tie up your laces, it's a very, very simple thing, but it's a life skill. And it's a very important skill. In the same way, when we are giving them the realia in the classroom, when we are showing them the real things, like the one somebody said, the kite thing. So if they are looking at the kite, so they will be able to relate their mind. Whenever they will see the kite, they will remember that it was being shown in the class. So it's very important that we keep the children engaged with these things, and we plan our curriculum, we plan our teaching in such a way that we are not only teaching them numbers, letters, and haruf. We are teaching, we are shaping their brain. We are telling them behaviors, social skills, emotions, and world view of our youngest learners. Because हम बिल्कुल ठीक है कि हम कहते हैं कि तरबियत जो है वो माँ बाप की जिम्मेदारी है, हम तो पढ़ाते हैं। लेकिन अगर इस चीज को आप दूसरे एंगल से देखें तो आपको ये समझ आएगी कि हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है तरबियत में।
क्यों आप जो आप में से स्कूल हेड्स होंगे, कोऑर्डिनेटर्स अगर यहाँ पर कोई बैठे होंगे, तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो टीचर होता है वो उसकी क्लास उसकी रिफ्लेक्शन होती है। अगर टीचर बहुत पोलाइट और हम्बल है और बहुत सॉफ्टली बात करती है, आप देखेंगे कि उनकी क्लास के बच्चे भी ऐसे ही बात करते हैं। अगर टीचर लाउड है और शाउट करती हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी क्लास के बच्चे भी वैसे ही करते हैं। तो वो ये आप एक तरह से गैर महसूस तरीके से तरबियत भी कर रहे हैं कि बच्चे को किस तरह डील करना है। अगर आपके सामने कोई बच्चा गलती करता है टीचर के सामने, आप उस बच्चे को कैसे डील करते हैं, ये आप सारे बच्चों को सिखा रहे हैं कि गलती होने पर हमने ऐसे डील करना है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जो अर्ली ईयर्स टीचिंग है, इसका टाइम थोड़ा सा कम होता है। इसकी इसकी भी एक रीजन है। इसकी रीजन ये है कि 3 या 4 घंटे का टाइम होता है, उसमें आपको अपने टोस पर होना होता है। आपका जो अर्लियर का टीचर है वो 1 सेकंड का ब्रेक नहीं ले पाता, इसलिए कि बच्चा बहुत छोटा है, और हर बच्चा जो है वो एक छोटा छोटा सा मॉन्स्टर होता है। हर बच्चा अपने आप में एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है। वो शरारतें भी करेंगे, वो सीखेंगे भी, वो खेलेंगे भी, वो क्वेश्चन भी करेंगे, वो तंग भी करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा टोस पे रहना पड़ता है, इसलिए इसके टाइम को थोड़ा शॉर्ट रखा जाता है, ताकि आपके ऊपर जो है ना वो प्रेशर कम हो जाए। तो जब आप अर्ली ईयर्स की टीचर की जॉब को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ये बहुत भारी जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा भारी जिम्मेदारी है। जो कुछ आप उनको आज बना रहे हैं, ये फाउंडेशन ईयर्स है, क्योंकि आपने 7 साल तक बच्चे की पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाती है। आपके पास उस बच्चे की पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी। वो जिस तरह का बनेगा, वो आपको वो उसकी ग्लिम्प्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। तो फिलोसफी ऑफ अर्ली इयर्स क्या है? आप लोगों में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे उसी टाइम रोक लीजिएगा, बता दीजिएगा। इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा चैट पे जा जा के चीजें नहीं देख पाऊंगी। अ, 1 मिनट में देख लूंगी बीच बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? अच्छा जी। अब अर्ली इयर्स की जो फिलॉसफी है वो क्या है? चाइल्ड को हमने लेना है द चाइल्ड एज ए होल पर्सन। आई विल ट्राई टू बी बायलिंगुअल। आई कैन स्पीक इंग्लिश थ्रू आउट, बट आई वुड लाइक टू बी बायलिंगुअल so that I can relate more with all of you. Children are not just mini students preparing for future academics, just what I just said, that in early years, development is holistic. Their brains are under development, cognitive, they know, they are learning to think. If you will make them think in early years, they will become thinking students in the later school's years. Their language is being developed. आपको पता होगा, जब आपके पास बच्चे आते हैं, 3+ का बच्चा आता है, तो उसकी लैंग्वेज अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती। बाजुकात बच्चे हमारे पास आते हैं, वो एक वर्ड बोलते हैं, 2 वर्ड बोलते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप वो एक वर्ड और एक 2 वर्ड करें, तो उनके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, उस बच्चे की एक स्टोरी होती है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी वो माँ की गोद से निकल कर आपके पास आ रहे हैं, सो वो दे आर लर्निंग हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। अभी उनको हमारी माएँ जो हैं वो पैम्पर्ड रखती हैं। तो आपने उस चीज को उनकी उनका जो ये कितना डेलिकेट टाइम है, कितना इम्पोर्टेंट टाइम है, यू कैन वेल इमेजिन। फिर सोशल कोलैबोरेशन, अभी तक वो अटैच थे अपनी फैमिली के साथ, एक क्लोज निट फैमिली में वो थे। अब वो जब स्कूल आए हैं, तो उनको दे नीड टू सोशलाइज ऑल्सो। दे नीड टू लर्न हाउ टू वर्क विथ पियर्स, हाउ टू डू कोलैबोरेशन, हाउ बी टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। सोशल स्किल्स में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल कि बच्चे के अंदर आप एम्पैथी डेवलप करें। वो एम्पैथी उसी वक्त डेवलप होगी जब वो आप में खुद होगी। जब आप बच्चा आपको देखेगा कि जब आप एक बच्चा अलग बैठा हुआ है, नहीं बात कर रहा, और टीचर उसको किस तरह से ट्रीट कर रही है, तो बच्चे को भी समझ आएगी कि अच्छा, अगर कोई अलग बैठा हुआ है, अगर कोई बात नहीं कर पा रहा, तो दिस इज हाउ आई नीड टू डील दैट विद दैट चाइल्ड। इमोशनल, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्ली ईयर्स, कि बच्चा इज लर्निंग टू मैनेज फीलिंग्स ऑन हिज ओन। अभी तक माँ थी, बाप थी, बहन भाई थे, या दादा दादी, बिल्कुल क्लोज फैमिली होती है, वो होती है। अब उन्होंने अपनी फीलिंग्स को खुद मैनेज भी करना है, एक्सप्रेस भी करना है।
उनको अच्छा लग रहा है, दे आर फीलिंग हैप्पी, दे आर फीलिंग सैड, दे आर एंक्शियस, scared, whatever their feeling is, they need to learn how to manage that feeling. They need to learn how to express that feeling in an appropriate way. बाजुकात बच्चा बहुत ज्यादा एंगर शो कर रहा होता है, तो एंगर इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई वजह होगी। So rather than tackling that issue, अभी for the time being आप वही टिश्यू टैकल करेंगे कि किस बात पे गुस्सा है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डीप डाउन रिसर्च करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट देयर आर certain reason that's why the child was being angry। क्योंकि बच्चा बिला वजह, कोई भी बच्चा बिला वजह कुछ भी नहीं कर रहा होता, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई स्टोरी होती है। फिर physically they are under development because they are learning to hold the pencils, they are learning to walk with balance, they are learning hand and eye coordination। So आप देखिए कि आप we cannot take one aspect of early years and we cannot give one aspect of early years more importance than others। We have to look after all these things। जब हम This is what I have written over here also, that when we teach a child to tie a shoelace, wait for their turn, or express their sadness, we are nurturing life skills that matter far beyond academics. I truly believe in this quote. It is true, and it happens every day in our classrooms. So this was one major aspect of early years. Then the other thing is play is learning। जैसे अभी आप सब ने कहा कि fun activities, so उनके लिए fun जो है वो waste of time नहीं है। उनके लिए this is natural language of children। The children learn through play, they learn to imagine, explore, negotiate, create and solve problems। आप लोग आपके क्लासेस में आई एम श्योर कि आपको प्ले टाइम को आप एज ए फिलर मत लीजिए, आप उसको एज ए पेडागोजी लीजिए। दिस इज अ वे ऑफ टीचिंग द किड्स। आपके क्लासेस में सेंटर्स होंगे या एरियाज होंगे जिसमें आप बच्चे खेलने के लिए जाते होंगे। कभी आप थोड़ा सा एक कान जरा उस तरफ रखें, तो आपको जो बच्चा क्लासरूम में बिहेव कर रहा होता है ना, उसके घर में जो कुछ चल रहा होता है, वो जब वो प्रिटेंड प्ले कर रहे होते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। आपको उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, उनके इश्यूज, उनके मसले सब पता चल जाएंगे व्हेन द चिल्ड्रन आर प्रिटेंड प्लेइंग, बिकॉज दे विल प्रिटेंड लाइक देयर पेरेंट्स। वापसी पर दूध लेकर आना, पैम्पर खत्म हो गए, मैंने ये खुद सुनी हुई हैं बातें छोटे छोटे बच्चों की। वो टेलीफोन टॉय टेलीफोन रखा हुआ है एंड दे आर टॉकिंग टू समबडी ऑन दैट फोन। तो ये जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्ले इज देयर एक्सप्रेशन। Through play they learn to imagine, they learn to explore, they learn to create and solve problems। So it's a very 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 important aspect of their learning। There are four and perhaps more than four, there are many different types of philosophies which are working in the early years। मॉन्टेसरी है, रिजो इमिलिया है, किंडरगार्टन है, इंक्वायरी बेस्ड है। ये जो बुक्स हमने लिखी थी, मैंने लिखी थी, मैंने कोशिश की थी कि उनको कस्टमाइज करूं। जिस जगह से भी मुझे कोई अच्छी चीज मिल रही है मैं उस चीज को लूं और उसको हम देखें कि हम अपने मेन स्ट्रीम में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, उसको स्नब नहीं करना। शट अप कॉल नहीं देनी बच्चे को, जब बच्चा बोलने लगे तो उसको शट अप कॉल नहीं देनी। लेट द चाइल्ड स्पीक, let the child question। It might be a silly question for you, but it will be a big 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 question and big point of learning for the little child। So please do that। So दो चीजें हमने सीखी कि प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन चाइल्ड को हमने एज ए होल लेना है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आप हैं, टीचर है। आपका काम जितना अर्ली ईयर्स में टीचर इंपॉर्टेंट है उतना शायद किसी भी स्टेज पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने बच्चे आज या तो आप बच्चे को बना देंगी या बिगाड़ देंगे या खत्म कर देंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू आर प्लेइंग। आप उनके साथ को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं नॉलेज, आप उनको मॉडल कर रही हैं बिहेवियर। आप उनसे जब क्वेश्चन करती हैं तो आप उनको भी मजबूर करती हैं कि वो क्वेश्चन करें। आप उनके लिए एक इमोशनली सेफ
प्लेसेस क्रिएट कर रही हैं। जब तक आप वो इमोशनल सेफ प्लेस नहीं करेंगे, आपकी बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, उस वक्त तक आपका बच्चा एक प्रॉपर लर्निंग मोड में नहीं आएगा। सो योर रोल इज वेरी वेरी वाइटल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अर्ली ईयर्स। फिर आगे हम आ जाते हैं कि इन्वायरमेंट। अभी तक चीजें क्लियर हैं? मैं एक दफा चैट में जाके थोड़ा सा देख लूं कि आपके पास कोई कोई इश्यू तो नहीं आ रहा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्वायरमेंट इज अ टीचर, इट्स द थर्ड टीचर। आप जितना अच्छा इन्वायरमेंट प्रिपेयर करेंगे, आपका बच्चा उतना जल्दी चीजों को ग्रास्प करेगा। It's hard work, but it will facilitate you during the school hours. बच्चे को एक जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है लर्निंग के लिए, तो बच्चा ज्यादा तेजी से सीखता है। इट शुड बी कॉम। मैं नहीं चाहती और मुझे नहीं पसंद कि की ट्रक आर्ट की तरह की क्लासरूम्स हो अर्ली ईयर्स की। नहीं, दे शुड नॉट बी वेरी लाउड, दे शुड नॉट बी टू मच। हाँ, जो चीजें उनमें रखी हैं वो मीनिंगफुल हैं, वो यूजफुल हैं, उनको टीचर को यूज करना आता है। आपका क्लासरूम ऑर्गेनाइज्ड है, एक्सेसिबल है। हम लोग क्या करते हैं, हम चीजें बना के भी रख देते हैं, तो वो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर्स को दिखाने के लिए रखते हैं। बच्चाज आर नॉट अलाउड टू टच देम। नहीं, बच्चे के पास जब तक बच्चा उस मटेरियल को टच नहीं करेगा। फिर मेरे पास बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बच्चे को मैनर्स नहीं है मैम, वो बच्चा चीजें तोड़ देता है। फिर स्कूल वाले हमसे पूछते हैं, तो बेटे ये मैनर्स भी हमने ही सिखाने हैं। ये चीजें हमने ही सिखानी है कि बच्चे को किस तरह से हमने अपने साथ लेकर चलना है, बच्चे को किस तरह से सिखाना है। पहले मॉडल करें। आप कोई भी चीज यूज कर रही हैं, कोई टॉय यूज कर रही हैं, कोई ऐप यूज कर रही हैं, तो आप उस चीज को मॉडल करें कि आप बच्चे के सामने किस तरह से इस चीज को हमने यूज करना है, यूज करने के बाद इस चीज को कहाँ रखना है। मैंने अपनी क्लास में, जब मैंने टीचिंग की, तो मैंने अपनी क्लास में अपने बच्चों को इतना ट्रेन किया हुआ था कि मेरे बच्चे हर लेसन के बाद अपनी क्लास को खुद साफ करते थे। हमने एक सॉन्ग बनाया हुआ था, टाइडी अप, टाइडी अप, टाइडी अप द क्लासरूम। तो वो जब वो टाइडी अप मैं स्टार्ट करती थी, तो वो मैं टिल आई यूज टू काउंट टिल 10। तो वो सब बच्चे ग्रेजुअली लग जाते थे और हर बच्चा चीज को अपनी जगह पे रखने की कोशिश करता था। तो मैस से परेशान ना हो। जहां मैस होगा वहां लर्निंग हो रही होगी। जब छोटा बच्चा है, मैस भी करेगा, लेकिन तोड़ फोड़ ना करे, चीजों को प्रॉपरली यूज करे, ये चीज आप उनको सिखाएंगे। ठीक है? तो इन्वायरमेंट को आपने कंड्यूसिव रखना है, आपने चीजें बनानी है। इसके लिए बहुत ज्यादा, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता। आ, दिमाग चाहिए होता है, आपकी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। जैसे मैं एक बार सेंसिस पढ़ा रही थी, सेंस ऑफ टेस्ट पढ़ाना था हमने। और तो देखें, आप इसके लिए कितनी सारी एक्टिविटीज आप बना सकते हैं। जो मॉन्टेसरी की किट होती है, उसमें इसमें ऑलरेडी उन्होंने चीजें दी होती हैं। लेकिन चूंकि हर जगह पे मॉन्टेसरी की किट अवेलेबल नहीं होती, आप लोगों के पास नहीं होती, कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करें। आपके पास ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए और कुछ नहीं है, अपना दुपट्टा बांध दें, चार किसी का दुपट्टा लेके तो आंखों पे बच्चे के बांधें, बच्चे को बिठाएं, बच्चे के सामने तीन चार चीजें रख दें। लेमन रख दिया, थोड़ा सा कोई चीनी रख दी, कोई ऐसी चीज रख दी, तो बच्चा उसको टेस्ट करे और आपको बताए कि इट इज स्वीट, इट इज सावर, इट इज बिटर, इट इज दिस। वो कभी भी नहीं भूलेगा। अब मुझे मतलब मेरा बिलीफ ये है कि हर चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते। आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है, थोड़ा सा माइंड चूज करने की जरूरत होती है, एंड यू कैन डेवलप सो मेनी एक्टिविटीज फ्रॉम दैम। सो इन्वायरमेंट इन चीजों से बनेगा आपका। जब बच्चे को पता होगा कि मेरी टीचर रोज कोई नई एक्टिविटी लेकर आएगी, मेरे लिए कुछ नया लेकर आएगी, तो बच्चा बड़ा एंथुजियास्टिक होगा उस चीज को करने के लिए। अच्छा, फिर आते हैं, अब हम करेंगे थोड़ा सा आपका काम। मैंने काफी बोल लिया, लेट्स गिव यू टाइम टू थिंक।
अब आप लोग अपने अपने पेयर्स में बैठे हुए हैं या मतलब एक से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे भी आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अ, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इन 3 सवालों के आपने मुझे जवाब देने हैं कि व्हाट डू वी रियली वांट फॉर चिल्ड्रन इन आर केयर। आपके ख्याल में व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप एज ए टीचर क्या समझते हैं? फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि डू आवर क्लासरूम्स गिव चिल्ड्रन इनफ स्पेस फॉर वंडर एंड एक्सप्लोरेशन। ऑनेस्ट बताइएगा कि आपकी क्लासरूम्स में चांसेस हैं, आप देते हैं चांसेस। फिर द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट ऑफ आवर routines are more meaningful and which feel rushed or overly adult directed। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत जल्दी स्पोर्ट करने पहुंच जाते हैं। हम बच्चे को हैंडल नहीं करने देते कि बच्चा अगर खुद एक चीज को, एक पजल को सॉल्व कर रहा है, एक चीज को कर रहा है, हम उसको चांस नहीं देते कि वो हम उसको सिखाएं। इसमें देखें दो थ्योरीज हो सकती हैं जो पियाजे और वाइगोस्की दोनों ने अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर काम किया। हम दोनों से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड पे बात की। अब पियाजे बिलीव्स कि बच्चा जो है वो अ लर्नर इन द वर्ल्ड, इंडिपेंडेंट लर्नर इन द वर्ल्ड। इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे अगर आपने स्पैगेटी बनाई है, आपने नूडल्स बनाए हैं बच्चे के लिए, और उससे पहले बच्चे को आपने सिर्फ स्पून से खाना सिखाया है, तो नूडल्स तो नहीं खाए जाते स्पून से। अब आपने एक बोल में के साथ नूडल्स भी रख दिए, स्पून भी रख दिया, फोक भी रख दिया। तो पियाजे बिलीव करता है कि बच्चा दोनों चीजों के साथ खाना मतलब खुद सीखेगा। वो बाय चांस वो करता रहेगा कोशिश, और इवेंचुअली वो उस चीज को सीख लेगा। जबकि वाइगोस्की कहता है कि नहीं, आप थोड़ा सा बच्चे को स्कैफोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि ये चीज बिकॉज आप स्पून में नहीं ले सकते, आपको फोक चाहिए होगा, तो बच्चे को आप फोक के थ्रू देंगे। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैं। तो मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि विच एक्टिविटीज आर एंड विच पार्ट ऑफ योर टीचिंग एवरी डे इज ओवरली एडल्ट डायरेक्टेड। आई गिव यू 3 minutes टू डिस्कस एंड देन आई आस्क फॉर योर फीडबैक। In the meantime, I'll read your chats. It's 10:33, 10:36, but I'll start taking your responses. Please discuss among yourselves. अब मैं आपकी चैट्स भी पढ़ रही हूँ, अगर आप चैट पे आंसर देना चाहें तो वहां भी दे दीजिए।
All right, very well done. I'm finding your answers very interesting. Um, अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं। किसी ने कहा है कि हमें लाइवली टीचिंग चाहिए, किसी ने कहा कि we want our child to feel respected, valued and cared. We want them to feel safe, loved. Well done. Yes, this is I think the most pivotal thing. उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो, लव फॉर लर्निंग हो, लेट देम फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। यस, तो ये सब कौन फैसिलिटेट करेगा? अंदाजा हो रहा है जो बात मैं आपसे कह रही थी कि आपका रोल, टीचर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके मेरे घर में, हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जिंदगियां हैं, हम एडल्ट्स हैं, बीमार भी हो सकते हैं, फैमिली में कोई इशू हो सकता है, लेकिन बस एक बात याद रखनी है हमें कि इस सारे में ये जो 20 बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 25 बैठे हैं, इनमें से उस मसले का इन किसी से ताल्लुक नहीं है। दे आर नॉट द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। और जो हम उनके साथ बिहेव करेंगे या जो हम उनके साथ करेंगे, दैट विल स्टे विद देम थ्रू आउट देयर लाइफ। तो वी व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस थिंग इज कि आप सब ने मुझे ये जवाब खुद दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हो गया, कि हमारा अपना टीचर्स का। जब तक टीचर्स ठीक नहीं होंगे, ये यू आर द स्पाइन। इस चीज को रियलाइज करें, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि यू आर द स्पाइन ऑफ एनी स्कूल। आपको पता है इंसान की बैकबोन ना हो तो इंसान चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता प्रॉपरली। So how can you expect the school to flourish and to progress if you are not working the way you should be working? So it's the very, very important thing. तो आपका बहरहाल आपके कुछ आंसर्स मेरे नहीं मिले आपके, कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हम बच्चे को ज्यादा डायरेक्ट कर देते हैं या ज्यादा रश कर देते हैं? तो वो आई नो कि हम रश करते हैं राइटिंग्स में, हम रश करते हैं, हम टाइम नहीं देते। हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछते ही हमें आंसर चाहिए, हम उनके ब्रेन्स को काम नहीं करने देते, वे टाइम नहीं करते। जब भी क्वेश्चन पूछें क्लास में तो थोड़ा सा टाइम दें, और कभी पिन पॉइंट ना कर दें पहले ही बच्चे को कि ये वाला बच्चा जवाब देगा, आप बाकी सब बच्चों की थिंकिंग ब्लॉक कर रही हैं। ऑलवेज गिव वेट टाइम, रिस्पॉन्स करें, लेट देम ऑल थिंक। बेशक आपने जहन में बना लिया कि मैं इस बच्चे से ये बात पूछूंगी, लेकिन उन्हें मत बताइए। तो आप देखिएगा कि जब आप ये सभी कुछ करेंगे ना, इसी से भी आप देखिएगा कि कितना चेंज आ जाएगा बच्चे के आपकी क्लासरूम के कल्चर में। अब जो अगली चीज है वो ये है कि सर्कल टाइम। आप में से किस किस को पता है कि सर्कल टाइम क्या होता है? क्या यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं जो सर्कल टाइम करते हैं? कोई एक मुझे, मैं इसमें मैं आंसर चाहूंगी कि आप लोग मुझे हाथ खड़ा करके कोई एक अनम्यूट करें माइक, मुझे बताएं कि सर्कल टाइम क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास में ना बच्चों को स्टार्ट में वार्म अप ही सर्कल टाइम करवाती हूँ वार्म अप के बाद। तो इसमें ना असेंबली के बाद वो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो सर्कल टाइम में सीखते हैं। सर्कल टाइम में एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाती हूँ। ग्रीटिंग्स के बारे में बच्चे खुद से ही बताना शुरू कर देते हैं, उनमें मैनर्स के बारे में। हालांकि प्ले ग्रुप के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो हम चीज़ उन्हें सर्कल टाइम में बिल्कुल बताते हैं वो अच्छे से उन्हें पिक करते हैं। बिल्कुल ऐसे। चले अब और मैं हम आपसे, उसमें स्टडी के लिए भी एक्टिव हो जाते हैं वो सर्कल टाइम में। बिल्कुल सर्कल टाइम जो है ना आपकी रूटीन को बिल्ड करेगा, आपके बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग को बिल्ड करेगा। आप सिर्फ एक काम भी अगर कर लेना, आप क्लास के डोर के ऊपर या क्लास में डोर के साइड के ऊपर 3 पिक्चर्स अगर आप लगाएं, कि जैसे एक जिसमें वो हग करना है, एक हाई फाइव करना है, और एक जो है पंच पंच करना है। मैंने मैंने ये 3 लगाई हुई थी कि पंचिंग, हाई फाइव एंड अ हग। और जब बच्चे सुबह के टाइम आ रहे होते हैं, उस टाइम कुछ नहीं हुआ होता,
तो मैं दरवाजे के पास ही, वहां पे गेट के पास, क्लासरूम डोर के पास खड़े होके जब बच्चा आता था तो मैं कहती थी चूज वन ऑफ देम। तो वो इतने खुश होते थे, एक्साइटेड होते थे। तो कोई हक चूज करता था तो आई यूज्ड टू हग दैट चाइल्ड। कोई पंच यूज करता था तो वी यूज टू पंच। कोई हाई फाइव यूज करता था तो हाई फाइव। अब आपने क्या किया, एक फिजिकल देखें, माँ दिन में कितनी दफा बच्चे को गले लगाती है, कितनी दफा प्यार करती है, चूमती है, टीचर करें। लेकिन अगर आपने बिगिनिंग ऑफ द डे एक छोटा सा ये जेस्चर कर लिया, आपने एक बॉन्ड बच्चे के साथ आपका एस्टेब्लिश हो गया। विद स्माइल ऑन योर फेस, विद अ वेरी हैप्पी फेस, यू जस्ट आस्क द चाइल्ड के चलें जी लेट्स डू हाई फाइव। ओके, अब बच्चा जब क्लास में आएगा तो वो एक अच्छे मूड के साथ आएगा कि somebody is there to look after me, somebody is there to care for। तो जैसे अभी इन्होंने कहा टीआरएस अनवर कैंपस था शायद जी, इन्होंने कहा कि बच्चा बहुत कुछ सीखता है। बच्चा जितना कुछ सीखता है सर्कल टाइम में, उतना शायद थ्रू आउट द डे नहीं सीखता। फ्रेश है, नींद पूरी लेकर आया है, उसका ब्रेन इस टाइम सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एग्जॉस्टेड नहीं है। तो आपने उसमें क्या करना है, उनको रूटीन सिखानी है। सर्कल टाइम है ये। कभी भी सर्कल टाइम बच्चे कुर्सियों पे बैठे हों तो आप नहीं कर सकते। सर्कल टाइम मीन्स कि आप हर बच्चे को फेस कर रहे हैं। दे आर सिटिंग आइदर इन अ सेमी सर्कल एंड यू आर सिटिंग विद देम। ठीक है, क्लास में एक तरफ एक कारपेट डाल लें, कोई डले होते हैं आमतौर पर अर्लियर्स में, उस जगह पे बैठे, कारपेट नहीं है दरी डाल लें, जो भी अवेलेबल है उसके ऊपर बैठे। और उस बच्चे को, हर बच्चा टीचर को फेस कर रहा है, टीचर बच्चे को देख रही है, आगे पीछे बच्चे नहीं बैठे हुए रेजिमेंटेड रोज में। आपने उन्हें सिखाने हैं डेज ऑफ द वीक। आप स्टार्ट कीजिए, अल्लाह का नाम से स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करें। रब्बे जिदनी इल्मा से दिन का आगाज करें। आप उनको रोज सारे बच्चों से कहें लेट्स, अब हम दुआ करेंगे, रब्बे जिदनी इल्मा पढ़ें। उसके बाद ग्रीटिंग सॉन्ग है, हाउ वर यू, हाउ वर यू। आप इतने सारा अवेलेबल है ये यूट्यूब पे, आप इनमें से कोई सा भी जो आप, मत सोचें आप अच्छे सिंगर हैं, मैं कितनी बुरी सिंगर हूँ लेकिन मैं गा रही हूँ। तो आप, मैं इतने बड़े लोगों के सामने कह रही हूँ, वो तो छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो आपकी आवाज अच्छी ही लगेगी जैसी भी होगी। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेना है। आपने बच्चे से कनेक्शन बिल्ड करना है सर्कल टाइम। आप उनको ग्रीटिंग सॉन्ग करें, आप उनको डेज ऑफ द वीक सिखाना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल सा हम करते थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे इज अ फन डे। आपने पहले उनको डेज ऑफ द वीक याद कराए, रोजाना करें उनके साथ। ये चीजें जो हैं, कुछ चीजें होती हैं जो रेगुलर करनी है। रीइंफोर्समेंट, रेपिटिशन चाहिए इस एज के बच्चे को, एक दफा करके नहीं आएंगे। रोजाना संडे मंडे जब तक उन्हें दिन याद ना हो जाए। अब आपको लग रहा है कि आपके बच्चों की ये स्टेट सेट हो गई है, दे नो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, दे आर एबल टू टेल यू द डेज ऑफ द वीक। नाउ यू आर टीचिंग देम द नेक्स्ट थिंग, व्हाट वाज द डे यस्टरडे। अब आप उनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आप इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, व्हाट वाज द डे यस्टरडे। आप उनको टेंस सिखा रहे हैं, आप उनको पास्ट टाइम सिखा रहे हैं कि इट वाज मंडे और इट वाज संडे और वट एवर इट वाज, और व्हाट विल द डे टुमारो, इट विल बी। आप उनको फ्यूचर टेंस सिखा रहे हैं, बगैर बताए, बगैर उनको इस चीज को रियलाइज कराए। दिस इज टीचिंग, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू। फिर आप उनसे क्वेश्चन ऑफ द डे करें, कि अच्छा जस्ट टेल मी के हु डिड समथिंग वेरी गुड यस्टरडे। वो आपको इतनी एग्जांपल्स देंगे, आई गेव वाटर टू माई दादी, आई आई हेल्प्ड माई मदर इन किचन। कुछ भी इनकरेज करें। किसी बच्चे के पास कुछ नहीं होगा कहने के लिए तो उन्हें पता होगा कि अच्छा, मैम इस चीज के ऊपर खुश होती है तो नेक्स्ट डे वो कर कर आएंगे, वो नेक्स्ट डे करके आपको बताएंगे। आप क्या कर रही हैं, तरबियत कर रही हैं, आप उनको सिखा रही हैं कि दिस इज हाउ वी हैव टू लुक आफ्टर पीपल अराउंड अस। आपका मूड कैसा है। अच्छा, जब हमें गुस्सा आए तो मैं तो ये भी क्वेश्चन कर देती, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड आई डू व्हेन आई एम एंग्री। शुड आई स्टार्ट हिटिंग? नो, हिटिंग इज बैड, सो व्हाट शुड आई डू। उन्हीं से पूछे ना क्या करना चाहिए।
जब वो सारे आंसर्स दे लें तब आप उन्हें बताएं कि व्हाट शुड वी डू। टेक डीप ब्रेथ, सिट डाउन, काउंट टिल 5, नो हिटिंग, टॉक टू दैट पर्सन। आप पे गुस्सा है तो आपसे बात करो, मैम को, मामा को बताएं, मैम को बताएं। अब ये आपका टाइम है, आप उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हैं, जो आपकी बेस बनेगा लर्निंग की आगे पूरे दिन के लिए। फिर मैं तो मूवमेंट्स भी बहुत कराती थी। क्या करना है, आप उनको सिखाना चाह रही हैं साइट वर्ड्स। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग, लेट्स गेट अप, लेट्स स्टैंड इन द सर्कल एंड लेट्स गेट अप व्हेन दे स्टैंड, देन यूज योर हैंड्स, यूज योर बॉडी। ओके, यू वांट टू टेल देम द स्पेलिंग्स ऑफ, फॉर एग्जांपल कोई एक वर्ड बताएं मुझे, वॉज, या द कर लें, या कैट कर लें, चलें कैट कर लेते हैं। आप स्पेलिंग्स लर्न कराना चाह रहे हैं, या कोई साइट वर्ड करते हैं ना, जैसे आर कर लेते हैं, चलिए ठीक है, इट्स अ साइट वर्ड, आर। तो आप उनको सिखाना चाह रहे हैं, तो मैं कहती थी ARER, ARER। अब मैं सब बच्चों के पास जाऊंगी, ए उसी के साथ उनके साथ रिपीट करूंगी, ARE, हाई 5 R, ARER। ये जब बच्चे आपके लेटर्स कर चुके हैं, ये आप उस टाइम करेंगे। उससे पहले आप और कुछ कर सकते हैं, और कोई चीज जो सिखाना चाहते हैं, दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दैट। तो ये सब चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं जब आप प्लान करते हैं। आपको जब पूरा दिन आप बच्चे के साथ गुजारते हैं, आपके जहन में होता है कि ये चीज मेरे बच्चों को मुश्किल लग रही है, उसको किसी भी तरह से ले जाके सर्कल टाइम के साथ कनेक्ट करते हैं। वो जो 10-15 मिनट हैं, उसमें बच्चा आपसे सीख लेगा, फन फन में बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सर्कल टाइम। अब आप जरा 5 मिनट का सर्कल टाइम क्रिएट करें, जिसमें कोई ग्रीटिंग सॉन्ग भी हो, कोई एक क्वेश्चन भी हो, और कोई छोटा सा, जैसे मैंने आपको तीनों की एग्जांपल्स दी हैं, आप भी उस तरह मुझे एक एग्जांपल के थ्रू एक सर्कल टाइम जो है वो करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे सर्कल टाइम स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देन वो कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, देन वो कहते हैं वी आर गुड, ओके नाउ टाइम इज इट, वो कहते हैं सर्कल टाइम, ओके। सबसे पहले मैं उन्हें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं डल से, जो घर मतलब कुछ सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, कोई एक्टिव होते हैं, कोई स्लो होते हैं, तो जल्दी जल्दी सर्कल टाइम सबको एक दूसरे के मतलब हम लोग सर्कल बना देते हैं। उसमें थोड़ा सा उन्हें मैं कहती हूँ स्टार्ट जंपिंग, जंप करें, जंप जंप, वो जंप करते हैं। ओके, जैसे आपने वेल बोला डन। कोई राइम्स के थ्रू मैं उन्हें हाउ मैं डेज वाली करवाती हूँ। देयर आर 7 days, देयर आर 7 days इन अ वीक, इन अ वीक। फिर वो बोलते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, एंड संडे। वैसे उनकी जो पॉइंट्स रिलेटेड होते हैं, मैं सब उनको जो भी मतलब व्हाइट बोर्ड पे जैसे ये डेट मेंशन करती हूँ, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, फिर वो बोलते हैं 7 days, मतलब वो इतना सीख गए हैं कि अब उन्हें पता है कि अब हमने ये बोलना है, 7 days होते हैं, टुडे इज डे, वो भी पता है छोटे बच्चों को ना, डेट डे। देन मैं ना साउंड पॉइंट्स के थ्रू ही ज़्यादा उन्हें करवाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मतलब पिक करते हैं पॉइंट्स के थ्रू, जो भी हम सिंग करके उन्हें वेरी डन, वेरी वेल डन। अब आप पॉइंट्स के साथ साथ ना थोड़ा सा कोई क्वेश्चनिंग भी करें उनके साथ। थोड़ा सा आप कोई जो अपना टीचिंग की भी कोई चीज़ है जो सिखाना चाहती हैं, अब आपने 7 days उनको सिखा दिए, अब आप उनको सिखाएं कि व्हाट वाज द डे यस्टरडे, व्हाट विल बी द डे टुमारो, आगे लेके जाएं। ठीक अच्छा, है, उससे जब पहले मैं आपके बच्चे बच्चों को एक चीज आ स्ट्रेटजी जाती है तो के फिर बारे बच्चों में को, हाँ, सबको मूव अच्छे मूव से नहीं करें, आगे बोलती, लेके फुल जाएं। नेम वर्ड। अब ना कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पूरा नहीं बोलते, वो बोलते हैं मतलब माय नेम, मैं कहती हूँ चलो इतना भी बहुत है, उसके लिए भी क्लैपिंग करवाते हैं। बिल्कुल जब उन्हें बिल्कुल पता है कि इस बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए क्लैपिंग हुई है, मैं भी पूरा बोलूंगा माय नेम इज अली। जैसे एक स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं, मैं कहती हूँ व्हाट इज योर नेम, उसको कुछ बच्चों को बोलना नहीं आता, वो बोल देते हैं मतलब वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, थैंक यू अली, सो तो मच। अच्छा, एक और जो किसी ने लिखा है, मैं नाम नहीं लूंगी, दिस टाइम कैन
push dull students. तो my dear, there are no dull students. ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है, आप बहुत बड़ा टैग लगा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे डल होते हैं। बच्चा डल नहीं होता। There are no dull students. हर बच्चा अपने पेस पे लर्न करता है। तो हमें ये चीज सबसे पहले, जब आप अपने माइंड में ये फिक्स कर लेते हैं ना कि ये डल है, ये एक्टिव है, ये बड़ा ब्राइट है, ये इंटेलिजेंट है, तो वो आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करता है। नेवर डू दैट, प्लीज नेवर डू दैट। तो आपने बच्चों को पोएम सिखानी है। मुझे बच्चों के पढ़ते हैं, वेल डन। तो यानी आप सब लोग सर्कल टाइम कराते हैं, बस अब उस सर्कल टाइम को आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और अच्छा करना है कि आप उसको यूज कर सकें अपनी टीचिंग के लिए, अपने एक कनेक्शन बिल्डिंग के लिए बच्चे के साथ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सर्कल टाइम। अब हम आगे मूव करेंगे, इफ यू अलाउ मी, तो मैं आगे चलूंगी। अभी तक चीजें क्लियर हैं सबको? कोई इशू तो नहीं है ना? वी कैन मूव ऑन। अब मैं Yes, आपके ma'am. साथ, Everything is clear. हाँ जी, तो अब हमने ये पहला पार्ट हमने इसका जो है वो कंप्लीट कर लिया है कि सर्कल्स टाइम जो है वो सेट्स द इमोशनल, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, कि इट सेट्स द इमोशनल टोन ऑफ द डे। आप अच्छे मूड में हैं, आप सो देखिएगा, अगर आपका अपना मूड भी ठीक नहीं है ना, आप बच्चों के साथ ये सब कुछ करेंगे तो वो आपका अपना मूड भी अच्छा हो जाता है। इट सेट्स द इमोशनल टोन ऑफ द डे, इट अलाउज फॉर एवरीवन्स पार्टिसिपेशन, जो यहाँ पे लोगों ने मेंशन भी किया, क्योंकि दे आर सिटिंग इन द सर्कल। एवरी चाइल्ड इज सीन एंड हर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चे को ये फील हो कि मेरी बात सुनी जाती है, मैं देखा भी गया हूँ, मैं सुना भी गया हूँ। It's a great time for morning messages, emotional check-ins, and introducing the theme of the day. तो ये मैंने ये बातें सारी आपको पहले ही कर दी हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है थ्रू दैट एस्पेक्ट। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हम ले आ जाएंगे, ये सबसे मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक्स भी मैंने लिखी हैं। मुझे अंदाजा है इसमें आप लोगों ने को में से जिनका सब्जेक्ट लैंग्वेज होगा, या जिन्होंने लैंग्वेज आगे परसू की होगी, पढ़ा होगा, तो दे विल हैव एन आइडिया। कुछ ने ट्रेनिंग्स के थ्रू लिया होगा, लेकिन जिनको नहीं भी है, तो बेटे अगर अब आप इस फील्ड में आ गए हैं तो देन प्लीज पुल अप योर सॉक्स एंड लर्न अबाउट दिस थिंग। मैंने इसको नाम दिया है लिटरेसी डीप डाइव का। लिटरेसी से मेरी जो मुराद है वो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके टीचिंग के लिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं: सेगमेंटेशन, ब्लेंडिंग, डिकोडिंग, डायग्राफ्स, ब्लेंड्स। अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सब चीजें आपको जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो आप बुक्स पढ़ा रहे हैं, उनमें हैं। इनकी ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो मैंने यूज की है। इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपको बीइंग टीचर्स पता होनी चाहिए ये टर्मिनोलॉजी, आप क्या कर रहे हैं। जब तक आपके माइंड में ये चीज क्लियर नहीं होती कि मैं ये कर रही हूँ और इसके पीछे ये लॉजिक है, उस वक्त तक आपकी चीजें आप की टीचिंग में वो डेप्थ नहीं आ सकती जो कि जरूरत है। सेगमेंटेशन क्या है? पुलिंग अपार्ट साउंड्स, सेगमेंट करना है साउंड्स को, पुलिंग द पार्ट अपार्ट द साउंड। क, ए, ट, कैट। ठीक है, कैसे हम करते हैं मैं आपको करके दिखाऊं। जैसे आप कह रहे हैं ये हाथ है, थोड़ा सा कैमरा नीचे करने दें से, जैसे हम सिखाते हैं ख, ए, ठ, कैट। अब पहला पार्ट क्या था? सेगमेंटेशन, ख, ए, ठ, कैट। सेकंड क्या किया मैंने? ये जो किया, ये क्या है? जब पूरे बाजू को किया, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। अब आप लफ्जों को जोड़ रहे हैं। जब आप फर्स्ट पार्ट क्या सीखते हैं, आप यू आर
pulling apart sounds. Second is you are blending the sounds. When you know the segmentation, when you know the blending, then you are decoding words. फिर क्या है कि जैसे ही वर्ड आपके सामने आएगा, बच्चा विल बी एबल टू रीड दैट वर्ड. Decode means to read that word, can understand and can read. अगली स्टेज क्या है? ये CBC के लिए होता है. I hope you all are clear what are CBC. Consonant, vowel, consonant. Like this cat is k, consonant, a, vowel, and then t, again a consonant. हम ये सिखाते हैं बच्चों को. फिर क्या आ जाता है? डायग्राफ्स. 2 letters making 1 sound. जब आप ये सिखाएं श, श, अब एस की साउंड क्या है? मैं उनको कहती they are far apart. Now they are coming close, and they become friends. And now when they are friends, so they make a new word, new sound. What is that? Sh, sh. फिर ch, ch, th, th, phone, f, f. आपने एक्शंस, आपके जितने एक्शंस होंगे ना, आप जब भी यू करेंगे तो बच्चा फौरन बोलेगा श. ठीक है? छ, छ. जब ये करेंगे तो बच्चा बोलेगा, या मैं ये करती थी छ, छ, छ. ट्रेन जो है जैसे मूव करती, तो आप बच्चे को पता चल जाएगा कि ये शी इज टॉकिंग अबाउट दैट डायग्राफ की क एंड ह व्हेन दे कम टुगेदर दे गिव द साउंड च. फिर क्या एक और चीज जो उसमें फोनिक्स में आती है, दिस इज ऑल फोनेमिक अवेयरनेस. फिर क्या आ जाता है? ब्लेंड्स. 2 letters with 2 sounds blended. अब आप ब्लेंडर में मिल्क शेक बनाते हैं, आपने मैंगो डाला, आपने शुगर डाली, आपने दूध डाला, और आपने ब्लेंड कर दिया, तो क्या वो कोई नई चीज बनेगी? नहीं. वो क्या होगा? वो सब चीजें कलेक्टिव हो जाएंगी, एक साथ होंगे. हर हर चीज का टेस्ट आएगा. चीनी का भी टेस्ट आएगा, दूध का भी टेस्ट आएगा, मैंगो का भी टेस्ट आएगा. दिस इज ब्लेंडिंग. दीज आर ब्लेंड्स. अब आप देखें, जब डायग्राफ्स बनते हैं तो स और ह मिलके क्या बनाते हैं? श. लेकिन ब्लेंड्स क्या है? ब और र, बर, बर. दोनों साउंड्स आएंगे, ब की भी आएगी, र की भी आएगी. दोनों साउंड्स आएंगे. प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए. ख की भी साउंड आएगी, क्ला, क्ल, क्ला है तो ख की भी साउंड आ रही है, ल की भी आ रही है, क्ल. स्ट है, एस की भी साउंड आ रही है, टी की भी आ रही है, स, ट. ट्रेन है, ठ की भी साउंड आ रही है, र की भी आ रही है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायग्राफ्स एंड ब्लेंड्स. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन मुझे लगा कि अब हमें सीखनी चाहिए ये चीजें. क्लियर है? शुड आई मूव ऑन? मुश्किल तो नहीं लग रहा? No, ma'am. You can. ठीक है. अब आपने क्या देखना है कि हम कैसे जब चलते हैं क्लास में, हम सेगमेंटेशन सिखा रहे हैं, देन वी गो टुवर्ड्स ब्लेंडिंग. 3 letter वर्ड्स की ब्लेंडिंग है. फिर हम डिकोडिंग सिखा रहे हैं. डिकोडिंग क्या है कि जब बच्चे को 3 letter वर्ड्स आए तो वो डिकोड कर ले. डिकोडिंग इज बेसिकली रीडिंग, फ्लुएंट रीडिंग. डायग्राफ्स हम सिखाते हैं, हम ब्लेंड सिखाते हैं. ये सब किस लिए सिखा रहे हैं? ताकि बच्चे को, हमारे को रीडिंग में कोई इशू ना आए, हमारा बच्चा एक इंडिपेंडेंट रीडर बन सके, विच इज अब 1 milestone ऑफ स्कूल, अर्ली ईयर स्कूल. कि जब बच्चा अर्ली ईयर स्कूल खत्म करे, कंप्लीट करे, तो द चाइल्ड शुड बी एबल टू बी एन इंडिपेंडेंट रीडर. अब मैं आपको सारा, मैं तो नहीं ना बताऊंगी, अब थोड़ा सा आप भी बताएंगे ना. अच्छा जी, अब ये है साउंड शॉप. थोड़ा सा एक्टिविटी एक करते हैं जो ऑनलाइन पे पॉसिबल है. ये क्या है? साउंड शॉप. अब आपने हैंड खड़ा करना है, और इस बार मैं TRS अनवर कैंपस को नहीं चांस दूंगी. somebody else should. वो माशाल्लाह अच्छा बोल रही हैं, काफी दफा बोल चुकी हैं. I would like somebody else to do that. I am a shopkeeper and I'll give you things I have only when you sound them correctly. ये आप क्लास में भी कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ आपके साथ, ये आप क्लास में भी कर सकते हैं. So this is a sound shop and I am a shopkeeper. आप क्लास में हो तो अपने सर पे एक शॉपकीपर का वो लगा लें, हेडबैंड भी लगा सकते हैं. एंड देन यू विल आस्क देम कि नाउ यू कैन बाय थिंग्स ओनली इफ यू विल साउंड आउट करेक्टली.
आप कैसे करेंगे? कौन करेगा इसे? कौन करेगा? जल्दी से मेरा बच्चा कोई हाथ खड़ा करे। कौन सा बच्चा करेगा? मेरे लिए आप 4 इयर्स के बच्चे हैं। मैं हाँ जी, हाँ जी, कीजिए। महानूर, महानूर बेग जी, महानूर। Well done. So this a gift goes to Manur. Manur, ये मछली आपकी हुई। This fish is yours. Thank you. ठीक है? Thank you. अब Thank you. दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको एक ही रखी क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था। मैंने आपके लिए ही रखा कि अब इस पे सबने करना है। लेट्स सॉर्ट द साउंड्स। अब आपने इनको साउंड्स को सॉर्ट करना है। आपने, मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस ये सीवीसी था, इसमें डायग्राफ है, इसमें ब्लेंड है, क्या है? ये अब आप लोग मुझे बताएंगे। जल्दी से 2 मिनट्स लीजिए और फिर हैंड्स अप कीजिए, तो मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। मीन द मीन टाइम में आपकी चैट्स पढ़ लूं कि कोई Uh, इंपॉर्टेंट मैसेज ना हो। here is the word अभी cat. नहीं, महानूर, महानूर आप Is the- माइक म्यूट कीजिए। लेट एवरीबडी डू इट एंड देन आई विल आस्क। ठीक है? लेट एवरीबडी डू इट। Okay. मेरी जान, ब्लेंड तो सभी को करना है। ये मत मुझे बताएं कि ट्रैप इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज नॉट अ वर्ड। ब्लेंडिंग तो हमने सबकी की है ना, ब्लेंड तो हमने सबको किया है। ये देखिए कि इसमें डायग्राफ है या ब्लेंड्स हैं। ब्लेंड्स वो और ब्लेंड्स हैं। आप जिसे ब्लेंडिंग, उन्हें ब्लेंडिंग ना कहें, उन्हें कहेंगे दिस देयर आर ब्लेंड्स इन इट। ठीक है? अच्छा। चलें अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि ब अ ग, बग, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस बग? चलें आप मुझे चैट में बताते जाएं, मुझे पता चल जाएगा, लेकिन क्विक। Yes, bug is CVC. Yes, it is van is CVC. Good. Then, what is chin? लग रही है इस पर। Chin. What is chin? Chin. अच्छा, इसमें से मुझे चलें ये बता दें कि chin trap is blending नहीं है बेटे, it has blend. Yes. Chin is digraph. Well done. Digrapture. Well done. अच्छा, and brush. What is brush? ब्लेंड है, बिल्कुल। अब देखिए, ये कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आपके पास आ जाए तो ये नॉलेज आप बच्चे को भी दे सकते हैं कि डायग्राफ, और आपने बच्चे को डिफरेंस नहीं समझ आता कि डायग्राफ है या ब्लेंड है,
तो अब बच्चे को, अच्छा फिर इसमें इनिशियल ब्लेंड भी होंगे, फाइनल ब्लेंड्स भी होंगे, मिडल ब्लेंड्स भी होंगे, स्प्लिट डायग्राफ्स भी होंगे, ये बड़ी आगे लंबी इनकी चीजें हैं, मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ। तो आपने बच्चे को जब आप पूछेंगे, आपको पता होगा, तो बच्चा अगर आपसे पूछेगा तो आप भी उसे बता देंगे कि देखा बेटा, जब फ्रेंड बने और उन्होंने एक नई साउंड बनाई, दैट इज च। लेकिन जब ब और आर फ्रेंड बने तो उन्होंने अपनी अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं की। दे बोथ blended with one another, but they both had their sounds in the word brush. ब की भी साउंड आई, will make them understand things a little better. अच्छा, अब जब हमारे बच्चे को ये सब कुछ आ गया, हमारा बच्चा सीबीसी वर्ड्स भी पढ़ रहा है, हमारे बच्चे को डायग्राफ्स भी आ गए, हमारे बच्चे को ब्लेंडिंग भी आ गई, ब्लेंड्स का भी पता चल गया, तो फिर आगे अब हमारा क्या काम है? इसके बाद ये सारा कुछ हमने क्यों किया? यह सारा हमने किया ही इसलिए कि हमारे बच्चे की रीडिंग बेहतर हो जाए। ये सब कुछ मैंने क्यों ऐड किया हुआ बुक्स में कि उनकी रीडिंग बेहतर हो, उनकी रीडिंग बेहतर होगी तो उनकी राइटिंग खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग स्किल्स। आगे जो है राइटिंग के 3 पिलर्स हैं इन अर्ली ईयर्स क्लासरूम्स। ये मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लाइंस क्यों लग रही हैं इसमें। आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग। चले एनीवेज इसको बेयर करें, क्योंकि अगर मैं बंद करूंगी तो फिर को ऑनलाइन है कोई इशू ना हो जाए। रीड अलाउड, शेयर्ड रीडिंग, इंडिपेंडेंट रीडिंग। अब जब आपके बच्चे की पहली स्टेजेस क्लियर हो गई हैं, अब हम उन्हें लेकर आ रहे हैं कि रीड अलाउड की तरफ, शेयर्ड रीडिंग की तरफ। ये बीच बीच में वैसे भी आती रहेंगी, जरूरी नहीं है कि पहले सारे डायग्राफ्स पढ़ेंगे तो फिर आप उनको ये चीज सिखाएंगे। ये चीजें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। हम लोग जो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स है ना, उसमें बाज़ हम रीड अलाउड को बड़ा मिस जज करते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, रीडिंग अलाउड तो सही नहीं है, तो टीचर रीड कर रहा है तो बच्चों को क्या फायदा है? नो, रिसर्च कहती है कि इसके अपने बेनिफिट्स हैं, इसके अपने फायदे हैं, जो कि हमें यूटिलाइज करने चाहिए। क्या है कि टीचर विल मॉडल फ्लुएंट रीडिंग एंड बिल्ड लैंग्वेज स्किल्स। बच्चे का क्या रोल हो जाएगा उसमें कि वो बच्चा एक्टिवली लिसन भी करेगा, प्रिडिक्ट भी करेगा। इसमें आप इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? एकदम रुक जाए, रीड अलाउड करते करते एकदम रुक जाए और फिर पूछें कि अच्छा मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। आपका बच्चा गौर से सुनेगा भी, बच्चा प्रिडिक्ट करना भी सीखेगा, बच्चा रिस्पॉन्ड करना भी सीखेगा, बच्चा थिंकिंग भी सीखेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जब आप उनसे, आप जब रीड अलाउड भी करें ना, तो उसको बिल्कुल मोनोटोन ना बनाएं, उसमें एक्सप्रेशन लाएं, उसमें प्लीज हिलाल टर्न म्यूट योर माइक प्लीज। तो आपने उसको जो है इंटरेक्टिव बना। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए काइंडली। हिलाल माइक म्यूट कर लीजिए काइंडली। नाश्ता कर रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, माइक कर लें, ठीक है? लैंग्वेज, आपके बच्चे का गोल क्या है कि इट विल इंप्रूव देयर लैंग्वेज, इट विल इंप्रूव देयर कॉम्प्रिहेंशन एंड दे विल इंजॉय। क्योंकि बाजुकात जब बच्चा को इंडिपेंडेंट रीडिंग हम फर्स्ट स्टेज पर दे देना, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो बच्चा एंजॉय भी नहीं करेगा। जब टीचर रीड अलाउड कर रहा है तो बच्चा रिलेट कर रहा है चीजों के साथ, तो बच्चा एंजॉय करता है। काइंडली माइक म्यूट कर लीजिए हिलाल। शाना आप कर दीजिए काइंडली। ओके जी, शेयर्ड रीडिंग क्या है? ये रीडिंग से अगली स्टेज है। जब आपने एक दफा खुद कर लिया, अब थोड़ा सा बच्चे और बच्चों के साथ मिलकर पढ़ें। इट्स स्पोर्ट्स डिकोडिंग। जैसे अगर आपने अभी डायग्राम ई पढ़ाया है और उस स्टोरी में कोई वर्ड आ गया है बी और उसके आगे आ गया है सी, तो आप कहें कि अच्छा चलें इन दिस सेंटेंस, रीडिंग करें साथ साथ करें। ओके, कैन यू सी एनी डायग्राफ इन दिस सेंटेंस यू हैव डन रिसेंटली? तो बच्चा क्या करेगा, उसको
आइडेंटिफाई करेगा, लर्न करेगा। तो बच्चे आप और फिर उनको एक्सप्रेशन सिखाएं कि अगर आपने कोई खुशी का एक्सप्रेशन देना है तो कैसे देना है, इफ यू हैव टू शो द हैप्पीनेस, इफ यू हैव टू शो द एंगर, तो थ्रू रीडिंग आपने उस चीज को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन पूछना है तो वेयर आर यू गोइंग, ये भी क्वेश्चन है। वेयर आर यू गोइंग, ये भी क्वेश्चन है। तो आप उनको सिखाएं, ये आपने सिखाना है उनको जब आप शेयर रीडिंग भी कर रहे हो, तो बच्चे की फ्लुएंसी बेहतर होगी। थोड़ी सी रीडिंग आ जाती है ना तो फिर बच्चा उस स्टोरी को, उस चीज को एंजॉय करता है। अपनी क्लास में, हर क्लास में एक लाइब्रेरी कॉर्नर जरूर बनाएं, जिसके लिए आपको महंगी किताबों की जरूरत नहीं। आपके अपने घरों में बच्चों की, किसी भी नेबर्स में किसी के बच्चों से कहते हैं कि जो बुक्स आप घर में नहीं पढ़ते वो ले आए, उन्हीं बुक्स को लाकर रख के एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं और बच्चे को चूज करने दें वहां से बुक। हो सकता है वो पहले दिन सिर्फ तस्वीरें देखे, हो सकता है वो प्रिडिक्ट करे, हो सकता है वो कोई एक आध लफ्ज पढ़े, लेकिन लेट देम डू दिस, दिस विल डेवलप देयर लव फॉर रीडिंग, लव फॉर बुक्स। मैं तो बड़ी इस चीज की, आई एम वेरी स्टॉन्च बिलीवर कि जितनी बुक्स अराउंड होंगी द चाइल्ड विल स्टार्ट लविंग द बुक्स ऑल्सो। अब ये जो डिजिटल चीजें आ गई हैं तो मैं, आई एम एन ओल्ड स्कूल, तो जो किताब का नशा है, मैं कहती हूँ जो बुक को हाथ में पढ़कर आपको मजा आता है वो किसी चीज का नहीं आता, वो आपको डिजिटल पे नहीं आता। तो ये चीजें बच्चे को जब वो इर्द गिर्द नजर आएंगी ना तब वो पढ़ेगा, तब वो करेगा, और आपको देखेगा, घर में माओ को देखेगा, यहाँ आपको देखेगा, तब वो बच्चा पढ़ेगा। तो यहाँ से हमने अब अपना लिटरेसी का पार्ट कंप्लीट कर लिया। हमने टेक अवे क्या किया, यहाँ से हमारे टेक अवेज क्या हैं? हमारा टेक अवे है कि बच्चा, पहली चीज क्या है कि बच्चे की फोनेमिक अवेयरनेस बिल्ड करनी है। फोनेमिक अवेयरनेस क्या है? सीबीसी आने चाहिए, सीबीसी डायग्राफ्स, ब्लेंड्स, हमें एक क्लियर पाथ हम फॉलो करें, बच्चे को आती हो चीजें। फिर हम बैलेंस करें रीडिंग टाइप्स में, कि रीड अलाउड ही ना सिर्फ करते रहें या इंडिपेंडेंट ही ना करते रहें, बल्कि हमें शेयर्ड और इंडिपेंडेंट तीनों टाइप की रीडिंग्स को यूज करना है अपनी क्लासेस में। एवरीडे मटेरियल आर द पावरफुल टूल्स, और कुछ नहीं मिलता तो अखबार रखते हैं क्लास में। आप उन्हें लेटर्स भी पढ़ा रही हैं ना, अखबार रखते हैं क्लास में अंग्रेजी का। उनसे कहें कि आज हमने ए पढ़ा है या बी पढ़ा है, तो ये छोटा सा पैसेज है, इसमें से बी को कलर करें। अब आप देखिएगा कि वो ढूंढ ढूंढ के बी को कलर करेंगे। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें हर चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के साथ क्लासेस में क्रिएट करनी है, जो हमारे बच्चों में एक बहुत क्लियर डिफरेंस लेकर आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लिटरेसी का पार्ट कंप्लीट। अब मुझे यहाँ से बताइए कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं उस चीज को अभी सॉर्ट आउट करूं। कोई इशू नहीं है जी, जिनका सिग्नल इशू की वजह से हो गया था। मैम, अच्छा जी कुछ जी। ना पेरेंट्स इस तरह के भी आते हैं, वो कहते हैं कि हम प्ले ग्रुप, मतलब जो पीजी क्लास है वो कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट, वो डायरेक्ट नर्सरी में करते हैं। अब वो नर्सरी में ये भी चाहते हैं कि बच्चों को सेल्फ राइटिंग आ जाए, बच्चों को फोनिक्स आ जाए और हर चीज़ आ जाए। अब जो, लेकिन वो बच्चा उस तरह, उसकी बेस नहीं बनती। पीजी क्लास कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इस तरह के पेरेंट्स को हम किस तरह मतलब डील करें? अच्छा, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। टीआरएस अनवार कैंपस है या अनवर है, वट एवर यू कॉल इट। और कैंपस ये वाले क्वेश्चंस मैं आपके लूंगी एंड में। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मैं आपका ये, इसको मैं आपको एंड में आंसर करूंगी। अभी मैं चाह रही हूँ कि अगर आपका रीडिंग अलाउड, शेयर्ड रीडिंग, डायग्राफ्स, ब्लेंड्स, इनमें से किसी चीज में कोई क्लैरिटी नहीं है तो वो आप लोग मुझसे पूछें, वो मैं आपको बता दूं। फिर ये वाले क्वेश्चन मैं लूंगी, मैं आपको टाइम भी दूंगी इस पे, डोंट वरी ओके। अबाउट। ये जो बुक्स आप लोग पढ़ा रहे हैं, द बुक्स यू आर टीचिंग एट द मोमेंट इन द प्री स्कूल,
व्हाट इज द बिगेस्ट इशू यू आर फेसिंग विद देम? आपको इनमें से क्या चीज मुश्किल लग रही है, आपको लगता है कि बच्चे नहीं कर पाते, या आपको डू यू थिंक कि दे आर ओके, जिस तरह से कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं दे आर गुड, और बच्चे की बेस अच्छी बन रही है इनसे, या आप उसमें कुछ चाहते हैं कि नहीं इसमें जो है चीजें डिफिकल्ट है या सिंपल है? वट एवर इज योर फीडबैक, तो जरा मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए उस पे। ये जो जैसे केजी क्लास है, इस क्लास के स्टूडेंट्स को ना ज्यादा जोड़ तोड़ जो होते हैं उर्दू में बहुत ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा मतलब लेट सीखते हैं उर्दू, उनको पहचान बहुत भूल जाते हैं, उर्दू इंग्लिश इजीली करते हैं। सॉरी राबिया कुछ बोल रही हैं? उर्दू की नहीं, मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, सॉरी। इस टाइम में क्योंकि उर्दू की बुक्स का मुझे आइडिया नहीं है, मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ आपसे। ज्यादा बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए? बिल्कुल। देखिए ये एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। लेट मी फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन कि ज्यादा बच्चे हों तो कैसे ट्रीट किया जाए। ज्यादा बच्चों से पहले तो मुझे ये पता हो कि आप किसको ज्यादा बच्चे कह रहे हैं। 20 इज वेरी नॉर्मल स्ट्रेंथ इन अर्ली ईयर्स। 25 इज एक्सेप्टेबल। 25 से ज्यादा हो तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ थोड़े से बच्चे ज्यादा हो गए। अब 25 बच्चा अगर आपकी क्लास में है और आप चाह रहे हैं, देखिए रीड अलाउड आप कर रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आपने सारे बच्चों को साथ करा लिया। जब आप शेयर्ड रीडिंग करा रहे हैं तो आप उनके ग्रुप्स बना दें। जब आप उनके ग्रुप्स बनाते हैं तो आप अगर 25 बच्चे हैं, आपने 5-5 के ग्रुप बना दिए कि वो 5-5 के ग्रुप जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो आपस में भी रीड कर रहे हैं, और जब आप रीड कर रही हैं तो वो आपके पीछे भी रीड कर रहे हैं। इसी तरह जब इंडिपेंडेंट रीडिंग कर रहे हैं तब बेशक आप उनको पेयर्स में दे दें, आप उनको इकट्ठा दे दें। कभी भी ये कोशिश ना कीजिए कि क्लास में आप एक तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं। आपने जब उनको कराना है तो आपने उनके इश्यूज को, जिद्दी बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, अच्छा, तो आपने उनको वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करानी है। अब जैसे मैंने आपके सामने ये साउंड शॉप बनाई, इसके लिए आपको चाहे 30 बच्चे बैठे हों क्लास में, कोई मसला नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ तस्वीरें लेनी है मुख्तलिफ इन चीजों की जो आपने पढ़ाई हैं। कैन है, वैन है, बग है, रैट है। सीबीसी पढ़ा रहे हैं तो आप उनको पूरी क्लास को चांस दें, बेशक नीचे सर्कल में बिठा लें और कहें कि जो ये बताता जाएगा ये आज के दिन के लिए ये पिक्चर उस बच्चे की हो जाएगी, दिस दिस विल बी हिज। तो आप देखिएगा कि इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको ज्यादा बच्चों को ट्रीट करने में। बच्चे बच्चे कब लगते हैं ज्यादा? जब आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। मैनेजमेंट कब ठीक नहीं होती? जब आपकी प्लानिंग ठीक नहीं होती। आपने जब आप प्लान करते हैं ना लेसन को, तो उसमें जब आप ये ख्याल रखते हैं कि मैंने हर मिनट को कैसे लेकर चलना है, तब आपको कभी भी क्लास में बच्चे भी ज्यादा नहीं लगते, आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगता, और आपकी क्लास भी बहुत अच्छी मैनेज हो जाती है। लेकिन जब आप बगैर प्लानिंग के ब्लैंक माइंड के साथ क्लास में जाएंगे तब आपको बच्चे ज्यादा लगेंगे। ठीक है? तो इसलिए आपने आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। द मोर स्ट्रांग प्लानिंग यू हैव, आपको पता है अगर आज मैंने सीबीसी कराने हैं तो मैं इनको, आप मुझे 2 मिनट दे, मैं आपको 20 एक्टिविटीज बता दूंगी जो पूरी क्लास के साथ कराई जा सकती हैं। मैंने ये करना है, अच्छा मैंने ये भी कर सकती हैं। आप सीबीसी सिखा रहे हैं ना, व्हाइट बोर्ड है आपके क्लास में, हर क्लास में बोर्ड होता है। आप उस बोर्ड के ऊपर आप क्या करें कि आपने 5 कॉलम्स बना लें, क्योंकि उसमें एक है ना, एक वाउल तो जरूर होगा, AEION U। अब आपने क्या करना है, आपने फ्लैश कार्ड्स दिए हैं बच्चों को। अगर फ्लैश कार्ड्स आपके पास नहीं है, होने चाहिए असूलन तो, अगर नहीं है आपके पास तो आप क्या कीजिए कि आप साइड पे वो वर्ड लिखें। जैसे मैंने लिखी दिया बग, ब बच्चे से कहना है, बारी बारी बुलाएं बच्चे को, आपने ये, यू रीड इट आउट एंड टेल मी कि वेयर शुड आई राइट दिस वर्ड, इन ए, इन ई, इन आई, इन ओ एंड यू। नर्सरी का बच्चा है, आराम से बच्चा पढ़ेगा। पहले उसके साथ प्रैक्टिस करें, ब, अ, ग, कौन सा आपको वाउल कौन सा नजर आ रहा है? यू नजर आ रहा है, तो वेयर विल बी पुट इट? यू में।
ड्रिल हो जाएगी, क्योंकि ये डायग्राफ्स हैं, ब्लेंड्स हैं, सीवीसी है, साइट वर्ड्स हैं, ये जब तक आप ड्रिल नहीं करेंगे बच्चों को नहीं आएंगे। मत सोचें कि आपने एक दिन करा दिया तो बच्चे इतने फ्लुएंट हो जाएंगे कि वो दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे देंगे वो बार बार प्रॉब्लम देंगे जब तक आप उनको बार बार नहीं कराएंगे। जो बच्चे कम बोलते हैं वो बच्चे भी ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, कुछ बच्चे की नेचर भी होती है, और कुछ बच्चे फिर ग्रेजुअली जब उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। चलें जी, ये हमारा लिटरेसी का पार्ट खत्म हुआ। सकते हैं जी, सैंड पे भी एक्टिविटी करा सकते हैं, नमक में करा सकते हैं। एक ट्रे लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए, सैंड से ज्यादा बेहतर है। अगर सैंड भी हैंडल कर सकते हैं तो नो इश्यूज इन दैट। और बच्चे को कुछ भी लेटर लिखवाने से पहले आप उस पे लिखवाएं तो बच्चा जो है वो उसकी, दिस इज अ सेंसरी एक्टिविटी, बच्चा उससे बहुत अच्छा सीखता है। जरूर करवाइए ये सैंड एक्टिविटी। न्यूमरेसी फोकस। अब हमारा, ये हमारा लिटरेसी था, अब हम विल टॉक अबाउट न्यूमरेसी। इसमें मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, सीपीए अप्रोच। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर के हमारा जो मैथ्स है वो हम सीपीए अप्रोच से कराएं। सीपीए अप्रोच क्या है? दिस इज कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मीन्स कि आप कोई चीज जो भी है वो उनको दिखाएं, पिक्टोरियल मीन्स उसकी पिक्चर्स, और एब्स्ट्रैक्ट वो माइंड में करें, मेंटल मैथ्स की तरफ उन्हें हम लेकर जाएं। It's a structured approach that helps young children build deep understanding of mathematical concepts by moving from hands-on objects to pictures and then to symbols and numbers. आप उन्हें 5 5 5 कहते रहे, उन्हें नहीं समझ आएगा। जब आप उन्हें 5 फिंगर्स ही दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, तब उनको जहन में बैठेगा कि ये 5 चीजें थी। एप्पल्स, क्लास में स्टूडेंट्स को 5 को बाहर बुला लिया, फिर 5 चीजें आपने बोर्ड पे बना दी, तब वो दे विल बी एबल टू रिलेट द नंबर वैल्यू एंड द नंबर। और फिर उनको आप जब एब्स्ट्रैक्ट भी कहेंगे 5, तो उनको पता होगा कि 5 की नंबर वैल्यू क्या है। सो दिस इज अ सीपीए अप्रोच विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It works. Why it works? Because it builds conceptual understanding before rote memorization. बच्चे की विजुअल मेमोरी होती है ना, बच्चा याद रखता है जब चीज कोई देखता है तो। आप वो जो एक है कि पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स, तो वो ये मैथ्स में इन दैट रिस्पेक्ट भी यूज करते हैं कि वो बच्चे के माइंड में सेव हो जाता है। इट सपोर्ट्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, उनको चीज देख कर याद होती है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट लर्नर्स होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर बच्चे का डिफरेंट है। कुछ मूवमेंट किनेस्थेटिक होते हैं लर्नर्स के, उनको मूवमेंट से याद होता है। तो आपने ये एज ए टीचर आपको पता होता है, अगर आपने सपोज नंबर 5 पढ़ा रहे हैं तो नंबर 5 में आपको पता है कि आपकी क्लास में 4 5 बच्चे ऐसे हैं, जब तक वो मूवमेंट नहीं करेंगे वो नहीं सीखेंगे। आपने उन्हें कहना है जंप 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, दे विल रिमेम्बर। ठीक है, तो ये चीजें आपको बच्चे के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को सीपीए अप्रोच के साथ आपको उनको रिलेट करना है। इट इनकरेज चिल्ड्रन टू विजुलाइज नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ये मैंने एग्जांपल्स आपके साथ ऑलरेडी इस चीज की शेयर करती हैं। अब आप जरा मुझे नर्सरी के लिए एक एक्टिविटी बनाकर दिखाइए, फॉर ऑल दीज 3 स्टेजेस ऑफ सीपीए फॉर टीचिंग टेक अवेज इन नर्सरी। कि आप नर्सरी में सीपीए अप्रोच के के थ्रू कैसे, अच्छा, इजीली साउंड कैसे पढ़ाएं। इजी तो मेरी जान कुछ भी नहीं है। बोर्ड पे स्टार वगैरह बनाकर एस काउंट करके इजीली क्या करते हैं, 5, ठीक है। तो आप मुझे अब बनाइए ये एक्टिविटी बना के दिखाइए कोई सीपीए की। उसके लिए बहुत सिंपल सी है ये।
अच्छा जी, शेपिंग सॉन्ग्स एंड लर्निंग नंबर्स, सॉन्ग्स विद एक्शंस एंड राइम्स बोर्ड पर। ठीक है, मैंने कहा टेक अवेज की एक्टिविटी बनाइए। ये 5 तो आपने बना दिए, फिंगर्स भी बना दी। टेक अवे कैसे सिखाएंगे आप? बिल्कुल, मैं आपके आंसर करूंगी। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कैसे याद कराएं, अभी मुझे आप जरा एक्टिविटी एक बना दीजिए। आई हैव 5 flowers आई गिव टू आयशा, देन हाउ मेनी आई हैव? वेल डन महानूर, वेल डन, वेल डन। 5 sticks in his hand, then take 2, then ask how many you have. Well done Rabia. Good, good Yusra. With 5 pencils, बिल्कुल। अब आप देखिए, जरा इस बात पे गौर कीजिए कि हमें कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बहुत लंबा चौड़ा रिसोर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। रिसोर्स कहाँ से हमारे पास आया? यस, बिल्कुल ठीक है अस्मा, कि वी कैन क्लोज टू फिंगर्स एंड देन आस्क हाउ मेनी लेफ्ट। वेल डन। ओके, यस, हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? अगर आपके बच्चे बता दें तो बहुत अच्छी बात है। वेल डन। हम इनफिनिक्स। लोग स्टूडेंट्स को भी तो खड़ा करके स्मॉल बिल्कुल, सी स्टूडेंट्स एक्टिविटी को करवा खड़ा सकते करके हैं कर सकते हैं, स्टूडेंट्स बिल्कुल बिल्कुल कर के, सकते हैं। मतलब जी। यूज एवरीथिंग। और कुछ नहीं मिलता ना तो ये बाहर जो पौधे लगे होते हैं ना, 5 पत्ते तोड़ लाए आप लोग। मतलब क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? ये आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें पड़ी होती हैं जिनको हम यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, दैट मीन्स के या इस पे विद बैग्स और बॉटल्स, यस, इन एनीथिंग इन आवर क्लास, बिल्कुल बिल्कुल। एनीथिंग वी कैन यूज इन आवर क्लास शुड बी यूज्ड। जो चीजें हमारे पास हम यूज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, जिसके लिए हमें बार बार मैनेजमेंट के पास नहीं जाना पड़ता, तो वो चीजें हमें यूज करनी चाहिए। जितनी हम यूज करेंगे उतनी ही बच्चे को याद रहेंगी। ठीक है, अब आके आ जाते हैं हम इस चीज की तरफ कि इस सीपीए अप्रोच क्लियर। मैंने सीपीए अप्रोच को बहुत ज्यादा आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। मैं भी बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं गई हूँ टुवर्ड्स अदर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने इसको सिंपल रखा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ सीपीए अप्रोच पे बात कर रही थी। और बना लो प्रिया, तुम बैठो। सॉरी, आई कांट हियर। तो अब आपके ये सब चीजें हमें जो समझ आई है, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस एक्सरसाइज विच वी हैव डन? क्या समझ आई है हमें सबसे इम्पोर्टेंट? कि अर्ली ईयर्स में एनवायरनमेंट और टीचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टीचर के बाद इन्वायरमेंट इज आर थर्ड टीचर, वो आपका को टीचर है। इन्वायरमेंट कैसे बनेगा? जब हम अपने इर्द गिर्द की चीजों को क्रिएटिवली यूज करना सीखेंगे। ठीक है, जितना हम क्रिएटिवली चीजों को यूज करेंगे हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, हमारे बच्चों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। मैं आपको बताऊं, ये तो
अर्ली ईयर्स की बात है कि मेरे पास एक बार कोई टॉपिक नहीं था आगे, बड़े बच्चों को, ग्रेड 2 के बच्चे थे, बड़े तो नहीं थे, लेकिन उनको मैं क्रिएटिव राइटिंग कराना चाह रही थी और किसी यूनिक टॉपिक पे कराना चाह रही थी। तो आई एक बच्चा लेट क्लास में एंटर हुआ, द चाइल्ड वाज लेट एंड ही वाज वेयरिंग द शू व्हिच हैड मड ऑन हिज शूज, जॉगर्स के ऊपर। आई जस्ट आस्क्ड हिम टू टेक ऑफ द शू। उसने he took off his joggers. I put them on the table and asked the students to write a paragraph about these shoes. अब there's it was a new experience for those kids. मुझे कोई वो नहीं चाहिए था. I did not need any big resources or nothing like that. But इट वॉज जस्ट द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर। और बच्चों ने उस पे ऊपर लिखा है, बहुत इंजॉय भी किया कि ये मड में कहाँ कैसे गिरा होगा, कैसे हमने उस पर एक अच्छी डिस्कशन की एंड देन वी हैड अ राइटिंग सेशन ऑन दैट। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें हर वक्त हम जब अपने माइंड को ये कहते रहते हैं ना कि हमें, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है, हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो वो हमारा जो बच्चा है वो अफेक्ट कर रहा है, हम खुद भी अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हम अपने माइंड को जगा नहीं रहे। तो जैसे ही हम अपने माइंड को जगाना शुरू करते हैं, हम अपने माइंड को अलर्ट करते हैं और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हमारी टीचिंग में ऑटोमेटिकली बहुत क्लियर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा आज का ये लेसन। अब ये एक पोइम है जो, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूंगी कि a child is like a butterfly in the wind. Some can fly higher than others, but each one flies the best it can. Why compare one against the other? Each one is different. Each one is special. Each one is beautiful. ये जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी एक ने कहा कि बच्चा डल हो जाता है, डल बच्चे हैं। बच्चे डल नहीं होते, वो अपनी पेस के ऊपर सीख रहे हैं, अपनी पेस से सीखेंगे और अपने टाइम पे बटरफ्लाई बनेंगे। वो सब आपके पास छोटे छोटे लार्वास की उसमें आते हैं और वो पुपास होते हैं, फिर वो अपनी जो स्टेजेस हैं वो कंप्लीट करेंगे और अपने टाइम पे बटरफ्लाई बनेंगे और उड़ेंगे। सो वी शुड नॉट कंपेयर वन चाइल्ड विद अदर, स्पेसिफिकली इन अर्ली ईयर्स। प्लीज नो कंपैरिजन, किसी भी किस्म का कंपैरिजन मत कीजिए अर्ली ईयर्स में। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आऊंगी। पहले मुझे आई एम श्योर कि वी आर क्लियर अब सो फार। अब आपने मुझसे पूछा हुआ है जी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इंग्लिश में कैसे याद कराएं। किस किस्म के क्वेश्चंस हैं ये जनरल नॉलेज के जो आपने उन्हें इंग्लिश में याद कराने हैं। देखिए, इंग्लिश में अगर आप उन्हें रट्टा लगवाएंगे तो आपके लिए भी एक हैसल होगी, उनके लिए भी हैसल होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश में आंसर करें जनरल नॉलेज क्वेश्चंस का, सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज यूज इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रेस्ट ऑफ द डे ऑल्सो। सर्कल टाइम से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद देम। जब आप खुद एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इंग्लिश बोलेंगे और फिर आपको खुद भी रट्टे लगाने पड़ेंगे, उनको भी रट्टे लगवाएंगे। बट इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश योर सेल्फ थ्रू आउट द डे, टूटी फूटी बोल रहे हैं, गलत भी बीच में बोल रहे हैं, तो देर इज नो वन टू जज यू। 4 साल का बच्चा आपको जज नहीं कर सकता। यू आर लकी, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वेर यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑन योर ओन। और बच्चा जो है वो आपको जज नहीं करेगा, और बल्कि आप और बच्चे के साथ अपना कॉन्फिडेंस अपना भी बिल्ड करें और उसका भी बिल्ड करें। तो अगर आप इंग्लिश में कराना चाहते हैं तो द बेस्ट वे इज कि आप इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करें, सो दैट इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। इसको सर्कल टाइम में ले आए। जनरल नॉलेज में क्या है? अच्छा, 5 प्रेयर्स, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कितनी नमाजें हैं, या पाकिस्तान किसने बनाया था, इस किस्म के क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज में। या पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, हाउ मेनी प्रोविंसेस वी हैव इन पाकिस्तान। तो आप उनको क्या करें कि जनरल सर्कल टाइम स्टार्ट करें, तो फिर उनके साथ उनको ये कहें कि आप जब आप सॉन्ग्स कर लें, डेज ऑफ द वीक पे कर लिया, तो
कि जैसे आपने अपना घर बनाया तो आपके बाबा ने किस तरह बनाया, या जिस तरह आपको लगता है घर कौन बनाता है, या छोटी सी स्टोरी, टेल देम थ्रू अ स्टोरी एंड देन टेल देम हु कायदे आजम वाज। क्योंकि एक इतने छोटे से बच्चे को ये समझाना भी बहुत मुश्किल बात है कि कायदे आजम कौन थे। तो इस तरह करके उनको थ्रू स्टोरीज उनको सिखाएं, इंग्लिश में सुनाएं। डोंट एक्सपेक्ट कि दे विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट डे। आप उनको बार 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 जब बताते रहेंगे तो दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू। सिंपल इंग्लिश यूज कीजिए। कैन बी यूज उर्दू लैंग्वेज फॉर प्री नर्सरी बिकॉज सम स्टूडेंट्स नहीं। जब हम ये कहते हैं ना युस्रा के दे कैन वी यूज उर्दू लैंग्वेज फॉर प्री नर्सरी बिकॉज स्टूडेंट्स डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो ये हमने पहले ही खुद ही बैरियर सेट कर लिया कि बच्चे जो हैं वो उनको इंग्लिश नहीं आती। डू वी कैन नॉट डू दैट। देखिए इंग्लिश बच्चे ने अपने इन्वायरमेंट से सीखनी है। जब आप उसके साथ राइम्स करेंगे, जब आप उसके साथ थ्रू आउट द डे बोलेंगे। अच्छा, अगर बच्चा ये भी कहते हैं मे आई ड्रिंक वॉशरूम, यहाँ तक बच्चे कह देते हैं। लेकिन अगर आपके पास बच्चा आया, आपको पता है कि उसको वॉशरूम जाना है और बच्चा नहीं बोल पा रहा, तो इसके लिए आप क्या करें? आप बच्चे से पूछें कि यू वांट टू गो टू द वॉशरूम, यू वांट टू गो टू द वॉशरूम। आप उसको सिखा रहे हैं एंड देन सेंड हिम टू द। आप उसको ये हर वक्त डंडा लेकर सर पे खड़े होंगे ना कि स्पीक इन इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, बच्चा नहीं बोलेगा। जब आप खुद बोलेंगे, आपका इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होगा, तब बच्चा बोल लेगा। How to deal with Pathan students because they don't understand English and even Urdu language. I am sitting in Islamabad and इस्लामाबाद में केपी से बहुत से लोग आते हैं, बच्चे भी बहुत होते हैं, पठान होते हैं, हर क्लास में होते हैं पठान यहाँ पर। इट्स एन एडवांटेज इफ दे डोंट नो उर्दू लैंग्वेज, इट्स एन एडवांटेज फॉर यू। आपको पता है कि रिसर्च, व्हाट डज रिसर्च सेज कि टिल 7 years आप उनको जितनी लैंग्वेजेस से एक्सपोज करेंगे दे विल लर्न। दे डू टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम जरा ज्यादा ले जाते हैं ये बच्चे, क्योंकि पश्तो इज वेरी स्ट्रांग। पश्तो उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। और पश्तो मुझे नहीं आती थी, आपको भी नहीं आती होगी, कुछ लोगों को कुछ को आती होगी। तो वो उसका ये है कि उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन इसमें आपका पेशेंस बहुत ज्यादा काउंट करेगा। और आपने उर्दू नहीं बोलनी। आप जब एक चीज आप बार 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 रिपीट करेंगे तो दे विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस मिले, लूप मिले, और उनको भी समझाएं कि इनके साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें अगर वो बोल सकते हैं, अगर आपका पेरेंट इस काबिल है। अगर पेरेंट नहीं बोल सकता तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज एक तरफ से वो फीडबैक आ रहा है, एक तरफ से इंसेंटिव आ रहा है, दूसरी तरफ से नहीं आ रहा। तो फिर आप उनको ये कीजिए कि क्लासरूम में ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सर्कल टाइम में प्रैक्टिस कीजिए। कि व्हेन आई आस्क से कि how are you, what will you say? I am good. Will you stop here? No, you will ask me how are you ma'am, then I'll say I am good. अब इसको स्टोरी बना दीजिए। पपेट ले आइए क्लास में। Okay, this is Mr. Puppet and he knows Pashto but he does not know English, so what should I do with him? तो जितनी आप वो पपेट करेंगे, जितना आप उनको एक्टिविटीज के थ्रू सिखाएंगे, तो दे विल लर्न दैट। ठीक है। अच्छा, फिर एक एक क्वेश्चन मैं भूल रही हूँ जो मुझे टीआरएस अनवार कैंपस ने किया था। ठहर मैं उनको भी पूछती हूँ पहले। मैम, कुछ स्टूडेंट्स में अच्छा नहीं होता लेकिन वो स्कूल की दूसरी एक्टिविटी में बहुत अच्छा होता है, और कुछ ही पार्टिसिपेट करता है बट स्टडी में वीक होता है, ऐसे में क्या किया जाए? स्टडी को फन बनाया जाए माय डियर। स्टडी को फन बनाएं और थोड़ा पेशेंस रखें। हर बच्चा तो एक सा नहीं होगा ना। हर बच्चे ने डॉक्टर नहीं बनना, हर बच्चे ने इंजीनियर नहीं बनना। उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, उसकी अपनी वीकनेसेस होंगी। उसकी स्ट्रेंथ्स को इन्हेंस कीजिए, उसकी वीकनेसेस पे काम कीजिए। लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट कि हर बच्चा एक तरह से जो है वो परफॉर्म भी करेगा और रिएक्ट भी करेगा चीजों को। हाँ, जो स्टूडेंट एक्टिविटी में अच्छा होता है उसको हम एक्टिविटी के थ्रू बढ़ा सकते हैं। वही कह रही हूँ ना, अपने फन इंक्लूड करें। जितना आप फन इंक्लूड करेंगे क्लास में, तो
हाँ वो एक बच्चे का बच्चा है जो है जैसे ना, हम वन लेटर सिखा रहे हैं, वो कुछ तो राइट कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करता, वो पेंटिंग के थ्रू, मतलब उसको पेंटिंग करना है, हम उसके थ्रू से कहते हैं आप ये पेज पे, तो मतलब डिफरेंट। प्ले डो यस आई वुड लाइक, जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से बड़ी एक्सपेंसिव सी और जो बच्चों के लिए ठीक भी नहीं होती वो यस वाली प्ले डो लें। आप यूट्यूब पे जाएं, देर आर 1000 रेसिपीज टू मेक प्ले डो इन द क्लासेस। आप वो प्ले डोस बनाइए, बच्चे को खेल खेल में लेटर्स लिखना सिखा देंगे आप। उनसे कहें कि प्ले डो के थ्रू ए लिखें, और प्ले डो के साथ बी लिखें, टू लिखें, थ्री लिखें। तो बच्चे बहुत बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं इस प्ले डो को, और वो लिखते भी हैं। लेकिन फिर वही बात है, आप कहेंगे क्लास में मैस होगा, झगड़ा होगा, तो उसमें आपकी प्लानिंग काउंट होगी कि एक टेबल पे रखें, सिर्फ 4 बच्चे उससे खेल रहे हैं, बाकी बच्चे डिफरेंट काम कर रहे हैं। जब उनकी 4 की टर्न खत्म होगी, उनके हैंड्स वॉश कराएं, अच्छे से उनको बिठाएं, फिर दूसरे 4 बच्चे उस चीज के ऊपर आए। तो ये आपने मैनेज खुद करना होगा। लेकिन जितना आप इन चीजों को यूज करेंगे, सैंट्रे का कोई मसला नहीं है, सैंट्रे आप लें। आप बोर्ड के ऊपर एयर राइटिंग कराएं। मैं तो बहुत ज्यादा एयर राइटिंग कराती थी कि ये विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी गो 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 गो, मेक अ सेमी सर्कल, गो अप, गो डाउन एंड देन मेक अ कर्व, तो दैट मेक्स एन ए। तो जितना फिर आप करें, अब आपके नाउ विल डू इट टुगेदर, स्लो स्लो। we'll start from the which line, that is perhaps आप लोग क्या कहते हैं, ग्रास लाइन, रूट लाइन, whatever you call it. तो आप we'll start it from the top line, we'll or the grass line, we go round 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 round, make a semicircle, go up, go down on the same line and make a curve. Now we'll do it fast. We'll start from here, make a semicircle, go up, go down and make a curve. अब जितना आप इसमें गेम ले आएंगी, उतना बच्चों का, आप ये आपने बार 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 कराया, एक दफा एयर में टेबल पे कराया, फिर आपने सैंड में कराया, तब फिर जब आप कॉपी पर आएंगी तो बच्चे के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो इस तरह करके हम करा सकते हैं। टीआरएस अनवर कैंपस, आपका कोई एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कहा था मैं बाद में डील करूंगी, वो मुझे बता दीजिए प्लीज। मैं ना एक्चुअली ये पूछ रही थी, उर्दू बच्चे देर से सीखते हैं बड़ी क्लासेस में, जैसे वन हो गया, केजी क्लास है, उनको बहुत मतलब मुश्किल से लफ्जों को बनाना, रीडिंग में बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, हालांकि उन्हें हम अलग से कहते हैं ये क्या ये है, उन्हें ये पता है ये मीम, लेकिन जब वो उसको वर्ड को ज्वाइन करके लफ्ज वो नहीं वो बना सकते, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इनके लिए ना ये चीज। कहाँ है? और हमारी आप बड़ी इसके, क्लासेस जो उर्दू में बहुत वीक है, उर्दू की रीडिंग में। कहाँ है? इसका जो है आपका नाम तो मुझे नहीं मालूम, टीआरएस अनवर कैंपस से कहूंगी मैं आपको। माय नेम इज तो ज़ारा। जारा, जारा उसके लिए देखें, रीडिंग चाहे इंग्लिश की हो चाहे उर्दू की हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ड्रिल्स। एक होती है कंटिन्यूस प्रैक्टिस। द मोर कंटिन्यूस प्रैक्टिस यू डू, द बेटर इट इज फॉर द किड्स। आपने रूटीन सेट करनी है क्लासरूम्स की। अगर आप उर्दू का लेसन डेली स्टार्ट कर रही हैं रीडिंग से, जिस तरह हम इंग्लिश में आप लोग फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, यस इसी तरह आपके उर्दू के भी फ्लैश कार्ड्स बने हुए हों। और उर्दू के फ्लैश कार्ड्स में जहां आपके हिज्जे आते हैं, आपने डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स चूज किए हुए हैं। तो आप जब वो बच्चे को रोजाना आपने, जिस तरह इंग्लिश में हम साइट वर्ड्स कराते हैं ना, तो मैं ड्रिल कराती थी कि वो एक बॉक्स में साइट वर्ड्स ढेर सारे पड़े हुए हैं, वो मैंने उठाए, मैंने कोई भी आके पढ़ना शुरू किए, इज, द, दिस, दैट, जो भी आता गया मैं पढ़ते गए। उर्दू में भी इसी तरह करें। जो आप स्ट्रेटजीज इंग्लिश के लिए यूज करते हैं, उर्दू थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी है इन दैट सेंस कि उर्दू के उर्दू हम फोनिक्स के थ्रू नहीं कराते। एक एक बहुत बड़ी रीजन ये भी होगी कि उर्दू हम फोनिक्स के थ्रू नहीं कराते। उर्दू को भी सौती अंदाज में पढ़ाया जाता है अर्ली ईयर्स में। अगर आप सौती अंदाज से उर्दू में पढ़ाएंगी तो उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा उर्दू का भी वो करना। उर्दू थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेती है, लेकिन उसके लिए आपकी ड्रिल्स इंपॉर्टेंट है। आपका हर उर्दू का लेसन, नर्सरी हो, प्रेप हो, वन हो, आपका हर लेसन जो है इट शुड स्टार्ट विद द रीडिंग ड्रिल।
आपने 5 से 10 मिनट उनको पहले रीडिंग की ड्रिल करानी है। तो जिस तरह आप वो ड्रिल कराते जाएंगे आप देखिएगा कि उनकी रीडिंग की वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी। जब वो ड्रिल डेली करते हैं ना तो वो फिर बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो हमारे हमारे एक्सक्यूज मी। आ, वो मैं। अच्छा, तो उर्दू में ये सब नर्सरी चीजें तक तो उनके बच्चा लिए ठीक बहुत रहता है, इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको हम भी मतलब राइम्स के थ्रू ही पढ़ाते हैं ड्रिल के। नहीं नहीं, ड्रिल कराएं। आप रीडिंग की में अगर आपका इशू बड़ी आ रहा है तो क्लासेस उर्दू है की ना, जैसे ड्रिल्स, रीडिंग की केजी ड्रिल्स और कराएं। 1 इनमें ज्यादा। केजी केजी में भी ड्रिल होती है, KG 1 2। उर्दू में आपको ग्रेड 3 4 तक ड्रिल करानी पड़ती है, क्योंकि उर्दू में थोड़े से बच्चों का लिखने में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है उर्दू, इतनी आसान नहीं है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो आप ड्रिल्स कराएं, रीडिंग की ड्रिल्स जितनी आप कराएंगी उतना उनके लिए आसान हो जाएगा। Excuse me, ma'am. I wanted to ask a question for a very long time. जी जी बताइए, सादिया निसार। जी मैम, मेरा ये कि मैं एक केजी क्लास की क्लास टीचर हूँ। तो मेरी क्लास में एक दो बच्चे हैं ना, तो जिनकी इंग्लिश में लेटर्स राइटिंग जब करते हैं तो वो सही तरह से लिख लेते हैं A to Z। तो लेकिन जब वो रीडिंग वगैरह करते हैं तो उनको पढ़ना नहीं आ रहा होता। और कोई भी जो लेटर हो तो पॉइंट आउट करके मैं उनको बोलूँ तो उनकी रेगुलेशन नहीं है उनकी ना, कि वो नहीं बता पा सकते। अगर वैसे मैं जैसे H लिखती हूँ, K लिखती हूँ, L लिखती हूँ, तो बोर्ड पे भी लिखूँ तो बोलूँ ये क्या लेटर है तो वो नहीं पढ़ सकते। तो वैसे उनको बोलूँ कि लिखो HBC कुछ भी, तो वो नहीं लिख पा रहे होते। तो इसका क्या सोल्यूशन हो इसका सकता है? सोल्यूशन मेरे डियर, आपके क्वेश्चन में ही आपका इशू भी पता चल गया ना। अगर आपका बच्चा A to Z लिख रहा है और रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपका फोकस राइटिंग पे ज्यादा है। ठीक है। अभी जो पीछे हमने सेगमेंटेशन की CBC वर्ड्स की की है, मैंने तो CBC वर्ड्स लिए थे, क्योंकि CBC वर्ड्स आएंगे जब आपकी फोनिक्स कंप्लीट हो जाती हैं, जब आपकी इंडिविजुअल साउंड्स आप लेटर्स की कर लेते हैं। तो आप काइंडली उनको जैसे मैंने अभी TRS अनवर कैंपस को भी कहा, मैं आप में से हर एक से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका लिटरेसी का लेसन हो, इंग्लिश का उर्दू का दोनों का, आपने ड्रिल से स्टार्ट करना है। आप चूज कर लीजिए कि 5 साइट वर्ड्स मैंने इस हफ्ते में कराने हैं या 2 साइट वर्ड्स कराने हैं। या जैसे आपने लेटर्स, अगर आपके बच्चे को लेटर्स भी नहीं आ रहे तो दैट मीन्स कि आपने सारा फोकस जो है वो राइट पे रखा है, आपने रिकग्निशन पे फोकस नहीं रखा। तो जब तक आप उनको रिलेट नहीं करेंगी, जैसे आपने उनको जॉलीफोनिक्स के थ्रू अगर आप करा रही हैं, तो आप उनको साउंड्स को बताएं कि जब वो ए एंड आम, जब जब आप वो साउंड करेंगे तब वो बच्चा पहचानेगा कि ए है। फिर उसको लेटर दिखाएं, हमेशा पहले रिकग्निशन और जो राइटिंग है ना ये साथ जानी चाहिए। राइटिंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग अ लेटर। वो तो आपका एक आउटपुट आ रहा है ना, तो अगर बच्चा उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा देन देयर इज नो पॉइंट। हाँ, कुछ बच्चों का रिटेंशन का इशू होता है, विच आई अंडरस्टैंड। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि बच्चे को आप रोज भी सिखाते रहें तो वो बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है, ऐसे बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका एक तो पेशेंस बहुत ज्यादा काउंट करेगा, आपको बहुत ज्यादा रेपिटेशन करनी पड़ेगी। द मोर फिर उनको उनको रिलेट करना पड़ेगा रियल लाइफ के साथ, उनकी जो इर्द गिर्द चीजें हैं उनके साथ रिलेट करेंगे। जैसे मेरी क्लास में एक बच्चा था जो ए बी रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो मैंने उसका जो भाई था उसका नाम आजान था। तो मैंने उसमें आई जस्ट ट्राइड स्टार्टेड आस्किंग हिम कि मैंने कहा ओके, अजान नेम स्टार्ट्स विद व्हाट? ए। तो फिर इस तरह करके आप जो है वो बच्चे को दोबारा दोबारा रिपीट कराएंगे तो वो फिर वो बच्चा सीखेगा। एक दफा जब वो सीख लेगा उसकी पेस बन जाएगी, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये रिटेंशन का इशू आ रहा है स्क्रीन टाइम की वजह से। तो आप इस चीज को आपको एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा रिपीटिशन करानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी, जो ये कौन है ये कह रही हैं कि आप मुझे सर्कल टाइम दोबारा बता दें क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी। तो नहीं माय डियर, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग आप हेड ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, वो रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगी। ऐसा तब होगा जब उनको पहचान नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा तब होगा। बच्चा, मैम जिद्दी बच्चों को कैसे ट्रीट करें? प्यार से। बच्चे को
कहते हैं कि कोई आपसे नफरत कर रहा है तो उसका, किसी ने हकीम लुकमान से पूछा तो उसका क्या इलाज है, तो उन्होंने कहा मोहब्बत। उन्होंने कहा मजीद कर रहा है तो उन्होंने कहा मजीद मोहब्बत। तो जिद्दी बच्चे की कोई रीजन विद द चाइल्ड, आप उससे एक इमोशनल कनेक्ट, वो किसी न किसी चीज के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। 4 साल के बच्चे में जो है वो बिला वजह जिद नहीं होती, उसके पीछे कोई एंजाइटी होती है, कोई होता है। अभी रिसेंटली आई वाज, मैं जहाँ पे स्कूल में हेड हूँ, हमारी क्लास पास एक बच्चा है, 4 साल का ही बच्चा है वो भी। उसका इस कदर एंगर शदीद था, इतना गुस्सा उस बच्चे में था कि वो अपने बाल तक रोज जो है वो फाड़ लेता था। और इतना रोता था, इतना रोता था, बिल्ला सिर्फ वो 2 मिनट के लिए चुप करता था जब उसके गले को दर्द होती थी, उसके बाद वो फिर he would start again screaming and crying. After a lot of investigation we came to know कि आपका जो है आपका जो उस बच्चे की दादी की डेथ हुई थी कोविड में, और उसके बाद उसकी माँ ने उसको कमरे में बंद रखा, सोशलाइज नहीं करने दिया। तो वो बच्चा, उसको सोशल एंजाइटी थी, जिसकी वजह से वो क्लासरूम में आकर ये सारा एंगर शो कर रहा था। तो ये जो बच्चा आपके पास बहुत जिद्दी है, इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी। ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट द एक्चुअल कॉज, रूट कॉज क्या है इस जिद की। जब आपको वो एक्चुअल रूट कॉज पता चल जाएगा, देन यू विल बी एबल टू ट्रीट। अच्छा, फिर अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास बच्चा नर्सरी में आएगा, कोई हर्ज नहीं है इस चीज में, देर इज नो हार्म। बहुत सारे पेरेंट्स फीस सेव करना चाहते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि जो इन्फ्लेशन का आलम है इस मुल्क में, वो कहते हैं कि हमारी फीस सेव हो जाए, 1 साल की फीस हम बचा लें, बच्चे को हम नर्सरी में डालेंगे। तो नर्सरी और प्रेप आप देखेंगे कि पीजी का सिलेबस बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वही चीजें रिपीट भी हो रही है ना। तो आप उस बच्चे को, अगर आपके पास कुछ बच्चे आ रहे हैं जो जिन्होंने आपके साथ पीजी की हुई है, उन बच्चों के साथ अटैच कीजिए। और अ, जब आप क्लास में रेपिटेशन कराते हैं या एक्टिविटीज कराते हैं, तो थोड़ा सा फोकस उस बच्चे के ऊपर ज्यादा रखिए, तो वो बच्चे जो हैं वो इस चीज को कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे अब ऐसे हैं जो नर्सरी में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और बिल्कुल ब्लैक होते हैं, पेंसिल भी नहीं पकड़ते। वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन उनकी एज भी तो फिर थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। तो जब बच्चे की थोड़ी एज ज्यादा होती है, तो बच्चा की जो पिकिंग पावर है वो भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो जब वो बच्चा आपके पास 4 इयर्स का होकर आ रहा है, तो वो उस चीज को जल्दी पिक भी कर लेगा, प्रोवाइडेड कि आप उसको गाइडेंस, राइट गाइडेंस दें। और इस चीज को बर्डन ना बनाएं कि इसने क्योंकि पीजी नहीं पढ़ी हुई तो ये नहीं कर पाएगा। इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे को इस एज में बार बार रेपिटेशन चाहिए होती है। आप रिपीट करेंगी चीजें, वो हो जाएंगी। आप देखेंगे कभी भी करिकुलम जो है वो लीनियर नहीं होता, वो हमेशा स्पाइरल होता है। हम एक चीज कराते हैं, उसके बाद दूसरी चीज कराते हैं, फिर हम पहली चीज पे चले जाते हैं। वजह क्या है इस चीज की? क्योंकि हमें बार बार चीजों को रिपीट करना है, सो दैट दे कैन लर्न। ठीक है। और क्या था, मैं कोई क्वेश्चन शायद मैं पीछे मिस कर गई हूँ मैं। So, जिन बच्चों की राइटिंग बहुत डर्टी है, उनकी राइटिंग कैसे ठीक करें? कोशिश करती हूँ, मगर वो इतने हैं, सजेशंस चाहिए, राइटिंग गंदी है। अच्छा जी। कुछ बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि जल्दी सिलेबस करवाएं और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करें, इसका सोल्यूशन बता दीजिए। नहीं करें प्लीज। थोड़ा सा पेरेंट्स को इस चीज के ऊपर काउंसल कीजिए कि आप बच्चे को उसके पेस पे चलने दीजिए। ओवर बर्डन आप बच्चे को करेंगे, बच्चा कोलैप्स कर जाएगा, एकेडमिकली कोलैप्स कर जाएगा। तो उनको समझाएं कि ये मत कीजिए। सिलेबस कवर आपने नहीं कराना जल्दी, आपने अपने पेस पे चलना है, पेरेंट को समझाना है। जरूरी नहीं होता कि हर बात पे आप पेरेंट से आर्गुमेंट करें। ठीक है। आपको पेरेंट कह रहे हैं जी ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे, हम बात करेंगे, हम देखेंगे, उनको टाल दीजिए और उस चीज को करें। क्योंकि एक बच्चे के लिए या 2 बच्चों के लिए हम सिलेबस जल्दी कवर नहीं करा सकते, हमें अपनी पेस पे चलना है। उनको भी ये बात समझाएं कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल अटेंशन तो जरूर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरा सिलेबस ही बच्चे को कवर करा दें। इंडिविजुअल अटेंशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हमारे
बच्चे को अलग लेकर चलते हैं। देर आर सर्टन थिंग्स for which we take one child individually for reading and writing or for some other things, but for the rest of the day they are working together as a classroom। जनरल नॉलेज है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस स्टेज पर एट द मिड ऑफ द ईयर अपने बच्चे का सेशन चेंज करवाना चाह रहे हैं, उसको आगे लेकर जा रहे हैं, तो बच्चा पॉइंट्स के पिक भी ना कर पाए, तो अगर केजी क्लास में बच्चा है और उसकी एज कम है और वो बच्चा पॉइंट्स पिक भी ना करे तो क्या करें? तो बेटा ये फिर आप अपनी एडमिन से बात कीजिए, क्या वजह है कि उसका केजी में एडमिशन हुआ। उसको अगर आपको लगता है तो केजी रिपीट करा लीजिए, ठीक है। अगर क्लास में स्ट्रेंथ ज्यादा हो, लाइक दैट 40+ और स्पेस ना होने की वजह से क्लासरूम सेपरेट नहीं कर सकते, बट 2 टीचर हो, तो वो कैसे आप इसमें मैनेज करें? सेक्शन बना लें या मिलजुल के कुछ सब्जेक्ट्स एक कर लें, ये आप पे है टोटली। अगर बच्चे 40 हैं और 40+ हैं और 2 टीचर्स हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि एक टीचर लिटरेसी और जनरल नॉलेज ले ले, एक न्यूमरेसी और वर्ल्ड अराउंड अस ले ले, कुछ भी इस तरह हम कर सकते हैं। दो सब्जेक्ट्स आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप दोनों की आपस का टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे को तंग करता है तो उसके कैसे समझाया जाए? अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी मैम, द सिलेबस ऑफ प्री नर्सरीज तो मैम, but in books having A to Z, how we complete this book? Activity pack as well as book, both are A to Z। तो होगा ना जानी, A to Z तो कराना है कि नहीं कराना? तो वो तो करवाएंगे हम। सिलेबस तो ये होगा ना, ये तो रिसर्च ने साबित किया बच्चा कर सकता है, तो करवाएंगे हम। 4 ईयर का बच्चा लिख नहीं पाता, उससे कैसे लिखवाया जाए कि वो खुद लिखे? प्रैक्टिस। अगर उसको पेंसिल की ग्रिप ठीक नहीं है तो उसमें आप डिफरेंट वो जो बैंड लगाते हैं हाथ में, उसको ट्राइपॉड पेंसिल की ग्रिप सिखाइए। और जैसे मैंने बताया, एयर राइटिंग कराइए, टेबल राइटिंग कराइए, सैंड राइटिंग कराइए। और फिर अगर आपको कहीं कहीं लगता है तो शुरू में 1-2 ट्रेसिंग दे दिए और उसके बाद इंडिपेंडेंट कीजिए। देखिए, आप बहुत ज्यादा ये लोग आप लोग ना डिमांड कीजिए और ना एक्सपेक्ट कीजिए कि कोई बहुत परफेक्ट हैंड राइटिंग होगी हर बच्चे की। कुछ बहुत अच्छा लिखेंगे क्योंकि उनकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप होंगे, उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी। कुछ अच्छा नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर वो प्रॉपर लाइंस में लिख रहे हैं और थोड़ा सा लाइंस आगे पीछे भी कर रहे हैं तो डजेंट मैटर। टेक देम एज ग्रेड 4, मतलब 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। बच्चे में भी इतनी एबिलिटी नहीं है। ये मेरी जान कैसे पता चल गया आपको कि बच्चे में एबिलिटी नहीं है? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मत दीजिए ऐसे स्टेटमेंट्स। नेवर से दैट, नेवर से दैट। अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें रादर देन पॉइंटिंग आउट चाइल्ड। अपने आपकी आप, अगर एक पौधा नहीं चल रहा है, ठीक है, एक पौधा नहीं चल रहा, आप बार बार पौधा चेंज करेंगे या क्या करेंगे? एक मट्टी में पौधा नहीं आ रहा तो आपको उस मट्टी को चेंज करना है ना। आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, उसको देखें कि उसमें कहाँ पे कोई फ्लॉ, आपके साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं है। पेरेंट्स को गाइड करें स्क्रीन टाइम पे, प्लीज एवरीवन गाइड ऑल द पेरेंट्स के स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज कीजिए। ये बहुत डेंजरस हो चुका हुआ है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बच्चे में भी इतनी एबिलिटी नहीं है, चाहिए मैंने बता दिया, जजाकल्ला में। अगर कम एज कम होने की वजह से, एज कम है तो फिर आप इसको देख लीजिए, हैंडल कर लीजिए। टॉक टू योर एडमिन, टॉक टू योर मैनेजर और प्रिंसिपल एंड डिस्कस इट कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड। बच्चे को A to Z करवा देते हैं बट पहचान नहीं होती। पहचान इसलिए नहीं होती ना कि आप लोग सारा दिन A to Z लिखवाते हैं, वो नहीं करवाते, रिकग्निशन नहीं कराते। पहले उसको रिलेट करें ना रियल लाइफ के साथ, राइटिंग एंड में कराएं और फिर बार बार रिपीट कराएं। अगर आपने ए लिखवा भी लिया है एक दफा कॉपी में और आप बी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बी के साथ साथ ए जरूर
घुमाया हमने दोबारा कि ये क्या था, व्हाट वी डिड राइट, व्हाट वी रोट यस्टरडे, दैट वाज ए ए ए। आप सिर्फ ये करेंगे ना तो बच्चे ए बोलना शुरू कर देंगे। ब ब ब ब एक्शंस, एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने बहुत डिटेल में बात कर लिया इसके ऊपर, रीडिंग रिजल्ट कैसे डेवलप होता है। ये भी आगे मैंने पहले सारा कुछ इसमें डिस्कस किया, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा ख्याल है टाइम इज अप, तो I'll say goodbye. Shabana, would you like to say something, or should I just say goodbye to everyone? आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए होंगे, बहुत सारी चीजें भी अभी आपके माइंड में होंगी, बट दिस वाज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो फिर हम कुछ और चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आई जस्ट वांट टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द थिंग्स। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, Miss Azra Kubar. It was really pleasure to see you here. आपने क्योंकि बुक्स भी डेवलप की और आप भी इनकी जब ट्रेनिंग कराती हैं तो मुझे लगता है स्कूल की टीचर बन गई हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ट्रेनिंग्स, फॉर मोर लर्निंग फ्रॉम यू। एंड द बेस्ट, हमारे पार्टिसिपेंट 71 प्लस थे और वो एंड तक रहे हैं, तो आपने इतना एंगेजिंग सेशन रखा है, तो आई एम ग्लैड कि आपने हमें ज्वाइन किया। और आई कैन सी द व्यूज, everybody is saying thank you. So everybody, thank you so much. Keep such sessions in future as well. अभी पूरा week है. Looking forward. Ms. Azra Tahir will join us on Saturday as well. So inshallah, see you tomorrow. Have a nice day. Take care, ji.